I hope that during this very critical time, the COVID-19 pandemic, you all are doing well. And I'm really happy that your college has initiated this activity so that by sitting at home also we can get ourselves and reach. And this is really wonderful activity. And I would like to appreciate Shivaji College, all administrators and the principal of the college. Friend, today I have been requested to deliver a talk on intellectual property right. In fact, this is not because it will be really difficult to, tell you the details of IPR, because IPR is a very vast topic. It requires days together. It cannot be, finished within 1.5 hours. But still, today we are going to have a overview of intellectual property right and the importance of intellectual property right. The main purpose of this kind of webinar to me, okay, because purpose of your college could be different, but for me is to make create some sort of awareness among the faculty members, research scholars, and student as well. Because what I've seen during last 32 years of my teaching experience, I have seen there are many research scholars, there are many, forget about research scholars, but there are many MSc and BSc students as well. They are very genuine, they are committed, and they are doing one or other innovative activities in their respective colleges and universities. But in spite of that, since they are not well aware of this intellectual property right, they are not getting benefit. They are not being benefited. Benefit. I mean to say is like whatever the intellectual property the you have created, and if you can have an exclusive right of that intellectual property, then you can go ahead and encash like anything. But unfortunately, this is not happening. This is one aspect. Second aspect, what I've seen over many years is most of our teachers, particularly those who are from colleges and social science teacher in particular, they are having huge number of books to their credit. But if I ask you, to me, I will use in between Marathi, Hindi, and English, because so that it will be more, easier for me to reach all of you. तो अगर आपका अगर इंडिविजुअल का बायोडाटा अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट most of the teachers from social sciences, they are having good number of books to your credit. लेकिन आप अगर अपने आप को सवाल करोगे कि भाई out of 10, let us say I am a teacher of social science and I have 10 books to my credit, and if I ask me question कि out of 10 मेरे पास copyright कितने books का है, तो शायद जवाब ये भी हो सकता है कि no, because I may not be having copyright of single book. This is what I have experienced when we had very recently, not very recently, but 1 year back, we had NAC accreditation of our university. And then when we started collecting data, and when I was, in fact, earlier it was there. Now that I will tell you in due course of time. So when we started looking at that particular key indicator of NAC criteria 3, I was very happy. मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास तो अभी इतने बड़े बड़े लोग हैं सोशल साइंसेस के, they are having huge number of books to their credit, वो मुझे पता है. And I thought like everybody is going to bombard the one after another the copyrights to NAC IQAC office, but unfortunately that they don't have copyright to that credit. इसका रीजन मैं आपको बताऊं. रीजन क्या होता है ना, हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते, हमारे टीचर्स. मतलब मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आप देखिए आपके कॉलेज में भी कम से कम मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं होगा सोशल साइंसेस का जिसका अपना खुद का किताब ना हो. लेकिन हम क्या करते हैं, व्हेनेवर द मैन्युस्क्रिप्ट और बुक इज रेडी, हम क्या करते हैं कि हम कोई पब्लिशर, छोटा मोटा पब्लिशर, या publisher may be good, I mean nationwide also, but my suggestion would be you should go for international publisher, whatever. तो ये publisher हम क्या करते हैं, we will always search publishers, and then publisher हमें कहता है कि चलो भाई आपका किताब मैं फ्री में पब्लिश करके देता हूँ, फ्री में उसका प्रिंट देता हूँ, and he may give us maybe 100-200 print to begin with. कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो खुद हमसे भी पैसे लेता है,
10,000, 20,000, 25,000, because I have seen this over the years. हम या तो खुद का पैसा देकर हमारे किताबें पब्लिश करवाते हैं, या तो फिर फ्री ऑफ चार्ज, मतलब हम पे नहीं करेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रॉयल्टी आउट ऑफ दैट। और बाद में हमें पता भी नहीं चलता कि वो जो पब्लिशर है, जिसका जो हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा इंटेलेक्ट है, उसका वो कितना पैसा कमा रहा है, हम देखते भी नहीं, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। एंड आई थॉट लाइक, जब ये एक्सपीरियंस मुझे आया तो मुझे ऐसा लगा कि एंड देन अनदर इंसिडेंट मैं आपको बताऊं कि दो तीन साल पहले I went to the Nagpur. There is one institute where I'm going to tell you that institute as well, where they are organizing regular trainings on IPR. So when I went there and had like 15 days training, मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैं खुद भी, क्योंकि मेरे खुद के भी, forget about you, I do have 3 books to my credit, but I don't have copyright. मैं ये मत समझिए कि मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, ये सभी के साथ होता है हमारे पास। उसका रीजन ये है कि we are not aware. And the main purpose of this lecture or this webinar is to create awareness amongst the teachers, because now today the teacher is the audience, but I have delivered, because I have series of webinars I have planned to create some sort of awareness among the research scholars, as well as MSc, as well as undergraduate, as well as postgraduate student. It need not be MSc, BSc, but it could be, the student could be from social science and humanity background as well. Another important point I would like to mention here, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले NAAC की जो गाइडलाइंस थे कॉलेजेस के लिए, it was included, मतलब NAAC used to ask us how many patent you have, how many copyright you have. But recently you must have seen, because NAAC has recently updated its guideline in the recent February this year. And if you see the recent guideline for colleges, they have removed. They are not going to ask you how many patent you have. They are not going to ask you how many copyright you have, but they are going to ask you how many copyright IPR workshop you have conducted. तो इससे क्या होता है ना, truly speaking, I was very unhappy looking at these new guidelines, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि कॉलेजेस में पहले हम IPR का तो हमें नाम भी पता नहीं था. It's not only colleges, even university too. This is equally true for university. लेकिन NAAC के गाइडलाइंस आए, NAAC ने हमें पूछना शुरू किया, and then we started thinking कि यार ये कॉपीराइट क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है. Then we started thinking, we organized many workshops, and people started thinking in that direction. And all of a sudden NAAC has withdraw that guidelines, that particular key indicator. तो अभी लोगों को ये लगता है कि अगर NAAC हमें पेटेंट और कॉपीराइट पूछता ही नहीं तो why should we do that? लेकिन मैं आपको बताऊं, my friend, this is not for NAAC purpose. Let me tell you, we can enrich ourselves. Let me tell you, because this is going to enrich our social status as well as financial status. क्योंकि आप देखिए ना, आप जितने भी forget about patent, लेकिन मैं copyright की बात कर रहा हूँ. आप में से कितने लोग हैं कि जो poem करते हैं? हमारे तो कितने मित्र हैं, मेरे तो कितने friends हैं कि they can do poem at any time. मतलब आप उनको मतलब खड़ा करिए, they can construct poem. इतनी क्या कॉपीराइट भले ही NAAC ने वो निकाल दिया. हॅलो 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 हा बोला ना. मी म्हटलं त्या दिवशीच एक with that prejudice mind. तो मैं कहता हूं कि आप इसको अपने आप को एनरिच करने के लिए, और आने वाली जो पीढ़ी है उसमें हमारे बच्चे भी है और अपने स्टूडेंट्स है, उनको एनरिच करने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. Before I move further, I would like to acknowledge, because these are, if you see those names, these are the mentors
they are regular trainers at this is the institute, name of the institute which I told you in the beginning, Rajiv Gandhi National Institute for Intellectual Property Management, Nagpur. This is the only institute across the country. This is the only institute across the country where you can have the regular training program. आप अगर इस institute के आप Google में अगर type करोगे इसका नाम, you will see their continuous entire year का आपको calendar मिलेगा, and then you can attend. Of course, they are charging very heavily. That is true, but you can attend like 2 days program, 3 days program, 1 week program, 15 days program. They can provide you hands-on training as well. And मैं आपको बताऊं कि कॉपीराइट को सबमिट करना इतना आसान नहीं है. इसके लिए चार्जेस में आपको आखिरी स्लाइड में होगी कि चार्जेस क्या है. इसीलिए अगर आपके पास समय है तो आई विल एडवाइज यू टू गो देयर एंड हैव अ ट्रेनिंग so that you can enrich yourself और आपके साथ इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे उनको भी आप अवेयर कर पाओगे. So to begin with, I would like to acknowledge all those mentors, all those trainers which are working day and night at Rajiv Gandhi Institute for Intellectual Property Management at Nagpur. These are some of the references which I have utilized for preparing this lecture, because I thought I need to tell you, because if you are really serious, I know sometimes what happens whenever we are doing one-to-one lectures. अगर आपके कॉलेज में मैं अगर आता तो मैं आपको देख पाता. Now I'm not able to see you, right? What you are doing. You may not be that much serious as well, क्योंकि वेबिनार का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस है. एडवांटेज ये है कि भाई हम घर पर मतलब घर में रहते हुए हम कुछ भी सीख सकते हैं, राइट. डिसएडवांटेज ऐसी हुई कि रिमोट एंड पे जो बंदा बैठा हुआ है वो सीरियस है, वो देख रहा है या नहीं हमें पता नहीं है. बट इन एनी केस दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. लेट मी टेल यू, ये लॉकडाउन तो मैं तो इसको बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट नहीं, ऑफकोर्स कोरोना वायरस पेंडेमिक इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट लॉकडाउन आई ऑलवेज ट्रीट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये फोर्सफुली हमें लॉकडाउन घर में बैठना पड़ रहा है, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एनरिच अवरसेल्फ. अब देखिए कितने कॉलेजेस है जिन्होंने वेबिनार शुरू किया, पहले तो हमें पता भी नहीं था. एंड देयर आर मेनी टीचर्स, दे स्टार्टेड interacting with students through many digital means. Therefore now the digitization is very very important part of any education institution. मैं आपको just एक quote करना चाहता हूँ यहाँ पर, because I have very good connections with many universities as well. मुझे पता है कि और coming मतलब US है, ऑस्ट्रेलिया है, many developed countries, they made the coming academic year complete online. They have declared, उन्होंने बता दिया कि भाई आप अभी कॉलेज में हमारे यूनिवर्सिटी में कोई नहीं आएगा. Throughout the year is going to be online. Teaching, whether lockdown is open or not, they're least bothered. मतलब वो लॉकडाउन ओपन भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब वी आर नॉट गोइंग टू हैव नाउ रेगुलर सेशन, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली ऑनलाइन सेशन. हाँ, इंडिया में देयर आर मेनी इश्यूज बिकॉज वी कैनॉट कॉपी the whatever practices we have in the foreign countries as it is in India, but it doesn't mean that we cannot do it. It doesn't mean अगर समय है जब इंटरेक्शन होगा तो मैं बताऊंगा कि in what way, because in the university the center which I am leading, Deendayal Upadhyay Kaushal Kendra, how we are in contact with students, how we are doing online teaching, that I'm going to, if you are interested, I will tell you in detail during interaction. तो ये रेफरेंसेस मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि you need to know what kind of references are available so that you can get enrich yourself and prepare yourself. So these are very important references. Now to begin with, I would like to disclose, because there are 4 to 5 disclosure. I am going to read those disclosure, because since I'm talking on IPR, I need to be very serious. So what are those disclosure? The information to be provided is introductory in nature. I mean, like whatever information I'm going to provide you, this is going to be introductory in nature. The information may be considered as a guideline, and therefore, before any legal proceedings, in-depth study of a particular acts are advised. I'm not going to take any responsibility. The information should not be produced as a matter of evidence or authenticity in any court of law, because it will be your responsibility, and we will not undertake any responsibility for results of any action taken, neither on the basis of this information nor any errors or omission. Because whenever we are speaking, I'm not going to, because for example, whatever training I got in Rajiv Gandhi Institute, I'm not going to be, I will not be able to pass on each and everything. There will be some errors, right? But I'm not going to be responsible for those errors. It means that these disclosures are essentially important for each one of you. Like whenever you are using this whatever information you will be collecting through this webinar, this can never be used as a whole and sole information. This is
a kind of a cross section of the many resources, and I would advise you to read many other resources and get yourself enriched in this particular area. Now, जैसे मैंने आपको बताया कि let us start. Now this is what the starting of this lecture is going to be. So first of all, before I introduce you to intellectual property, I would like to ask you some question. Obviously questions मतलब उस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे कि आपको वहां से जवाब देने हैं, but you can ask this question to yourself. अपने आप को सवाल करिए कि we have to disclose what we have to disclose, what kind of property we have, right? Let us disclose. So first of all, what are the immutable properties we have? Okay, मतलब फिक्स प्रॉपर्टी जो जिसको हम जिसका कि स्थलांतर नहीं हो सकता है. लैंड है, फ्लैट है, बेंगलो है, मेरा घर है. This is my immutable property, right? And then we have some movable properties as well, like smartphone है हमारे पास, two wheeler है, four wheeler है, पेन है, furniture है, dresses. There are many example of movable properties. Now, what is the beauty of these properties called as, let me tell you, a tangible properties. Tangible properties means the property which has got physical existence. The property which has got physical existence, मतलब जिसका physical appearance or existence हो, जिसको हम touch कर सके. मेरा घर है, जैसे कि मैं लैपटॉप लेकर मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, I can touch. So this is my movable property, right? टेबल है, जिस टेबल पे ये चेयर है, दिस इज ऑल माय मूवेबल प्रॉपर्टी. जिस घर में मैं बैठा हूँ, दिस इज माय इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड. आप देखिए, as far as these tangible properties are concerned, owner always enjoys exclusive right over the same. एक्सक्लूसिव राइट का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो मेरे पास मेरे घर के सामने मेरा एक प्लॉट है, फॉर एग्जांपल मैं भोसले सर को बेचना चाहता हूँ, राइट? अब भोसले सर को मैंने कहा कि सर देखिए ये इसकी कीमत 20 लाख है. अब मैं लिख कर दे रहा हूँ कि मेरा प्लॉट है. अब मैं लिख कर दे रहा हूँ एक पेज पे कि मैं आपको बेच रहा हूँ, आप मुझे 20 लाख रुपए दीजिए. तो भोसले सर मेरे बहुत अच्छे मित्र है, लेकिन वो कहेंगे नाही नाही सर, सर असं काय करताय तुम्ही, असं असं करून कसं चालेल? तुम्हाला जर हा मला प्लॉट द्यायचा आहे तर तुम्हाला आपण दोघांनी रजिस्टर ऑफिस मध्ये जावं लागेल, तिथे रजिस्टर करावं लागेल, मग ते डॉक्युमेंट माझ्याकडे असेल. व्हॉट डज इट मीन? इट मीन्स दॅट व्हेनेवर वी आर बाईंग, whenever we are selling any tangible properties, we always ensure that we are going to have the exclusive right. We are going to have the exclusive right. मेरी कार, मान लो अगर कार मुझे बेचनी है, मैं अगर कहूँ मेरे फ्रेंड को कि सर ये कार है, अब मेरी 10 लाख में मैंने ली थी, now it is second, it has been 10 years now I'm going to give you for 1 lakh rupees, आप ले लीजिए. तो वो कहेंगे yes fine, 1 lakh rupees or 50,000 whatever it may be, but I would like to have it registered transaction in RTO office. It means for each and every tangible properties, we are going to find out, we are going to identify the appropriate, appropriate offices where the registrations, legal registrations are being done, so that you can enjoy the exclusive right. ये हम tangible property के साथ करते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, कुछ इन्वेंशंस की कुछ एग्जांपल बताऊंगा. देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स. ये कुछ एग्जांपल्स हमें सबको पता है. मैं एग्जांपल इसीलिए दिया बिकॉज़ वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि मुझे पता है ऑडियंस में, बिकॉज़ वी हैव गॉट द हेटेरोजेनियस ऑडियंस. The teachers are from all the discipline, right? इसलिए मैंने बड़े कॉमन एग्जांपल लिए, जैसे मार्कोनी है, हमें पता है कि 1980 में रेडियो हुआ था 1905 में. एंड देन थॉमस एडिसन जो इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंशन हुआ था, कुछ कंट्रीब्यूशंस है. जैसे कि जब भी तबला सामने आता है तो हमें उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम सामने आएगा. जब पेंटिंग आएगा तो एम एफ हुसैन का नाम सामने आएगा. हमें पता है कि माधुरी दीक्षित की बड़ी अच्छी पेंटिंग के लिए फेमस है एम एफ हुसैन साहब. Singing, there are many people, but still Lata Mangeshkar has created her own space in the world of this particular aspect, right? A.R. Rahman, although he is very young, relatively young as compared to many magicians, but he has created his own importance, right? And Abdul Kalam, one of the very famous scientists, of course, former president of this country. Whenever
ये तो मैंने बड़े बड़े नाम दिया। आप में भी कुछ ऐसे टीचर होंगे कि जिनके लफ्जों पे अभी भी कुछ शेरो शायरी आती होंगी, जिनके लफ्जों पे कुछ पोएम्स आते होंगे। फॉरगेट अबाउट पोएम्स, कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर मैं उनको कहूं कि सर मुझे ना इस थीम पे कुछ लिखना है, तो विदिन कपल ऑफ आवर्स दे कैन गिव मी दैट ड्राफ्ट। कुछ हमारे साइंस के टीचर है कि बड़े इनोवेटिवली वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते, इनोवेटिवली एक्सपेरिमेंट, जो मैनुअल बनाते हैं और लैब में रखते हैं। दे नेवर थिंक ऑफ हैविंग पेटेंट और हैविंग कॉपीराइटेड। जो मैनुअल हम बनाते, फॉरगेट अबाउट पेटेंट, लेकिन जो मैनुअल हम बनाते हैं बड़ा यूनिक सा मैनुअल होता है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि बाकी कॉलेज में क्या नहीं हो रहा जो मैं करना चाहता हूँ, बड़े क्रिएटिव हमारे टीचर्स होते हैं, लेकिन हम कभी भी उसके, जैसे कि मैं प्लॉट का एग्जांपल दिया हूँ, जैसे कि कार का एग्जांपल दिया हूँ, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इसका एक्सक्लूसिव ओनर मैं खुद रहना चाहता हूँ, ये कभी हम सोचते नहीं। तो उसका रीजन ऐसा है कि हमें कभी लगता ही नहीं कि इससे पैसा मिल सकता है। आप देखिए ना, आप सोचिए, मूवी है, मूवी पायरेटेड मूवी हमें आती है, लेकिन पायरेटेड मूवी यूज करना, देखना इलीगल होता है, हम सब पता है, हमें पता है, इसीलिए हम डरते हैं। एमएस वर्ड देखिए, एमएस ऑफिस देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, राइट, इसका पायरेटेड वर्जन यूज करना डर होता है। इसीलिए हम कॉलेजेस में, मतलब ऑफिशियल जो इस्टेब्लिशमेंट हमारे होते हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के, वहां पर हम पायरेटेड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू आर डूइंग दैट यू कैन, लीगल एक्शन आपके खिलाफ हो सकता है, क्योंकि वहां पर काफी पैसा है। लेकिन हम जो करते हैं हमें ऐसा लगता ही नहीं कि उससे पैसा हम कमा सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, although you are going to earn a small amount of money to begin with, आप सोचिए ना, मैं किताब का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इट इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल, जो कि हमारे हर टीचर के पास हो सकता है। आप देखिए ना, आपका किताब, आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो किताबें, वो आपका पब्लिशर कहाँ सेल कर रहा है आपको पता भी नहीं है, यू डोंट नो। मोरओवर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप अपने आप को अगर थोड़ा फाइन ट्यून करेंगे, फाइन ट्यून का मतलब क्या होता है, हम बहुत बार क्या करते हैं, किताबें लिखते, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस हम नहीं, मतलब व्हाई दैट बुक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, हु इज गोइंग टू बी टारगेटेड ऑडियंस। अगर टारगेटेड ऑडियंस में आइडेंटिफाई करूं और वो मेरा किताब पढ़ने के बाद वो टारगेटेड ऑडियंस के लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस आ सकता है, ये अगर मैं प्रेडिक्ट करूं इंट्रोडक्शन में, और मैं अगर ये पब्लिश करूं, पब्लिश इन द सेंस, देखिए मैंने क्या किया, मेरे किताब नहीं मेरा पूरा तैयार हुआ, मैंने खाली इंडेक्स बनाया, एंड देन आई हैव आयडेंटिफाइड टार्गेटेड ऑडियन्स। और टार्गेटेड ऑडियन्स जैसे की मान लो फॉर एक्झाम्पल कन्नड तालुक्यातील काही विशिष्ट एक जमातीचा तुम्ही अभ्यास करताय, त्यावर पुस्तक लिहू इच्छित आहे, परंतु अशा प्रकारची परिस्थिती भारतामध्ये बऱ्याच प्रदेशामध्ये असू शकते। तुमचा हा अभ्यास जो आहे, तुम्ही जर ऑब्झर्वेशन असतील त्यावर जे तुम्ही तुमचं आकलन जे सांगणार आहात, हे कशा पद्धतीनं त्या ऑडियन्ससाठी महत्वाचं असेल आणि त्या ऑडियन्सचा हे पुस्तक वाचून काय फायदा होणार, हे जर तुम्ही राइट इन द बिगिनिंग इफ यू कैन प्रेडिक्ट दिस, और उसका अगर छोटा सा अगर ब्रीफ इंट्रोडक्टरी टाइप अगर 2-3 पन्ने का अगर बनाएंगे ना, आप सभी पब्लिशर के पास अगर भेजेंगे, यू विल हैव क्यू ऑफ पब्लिशर, वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि सर देखिए ना, आप ये किताब हमारे लिए लिखिए ना, हम आपको कॉपीराइट इतना देंगे, हम रॉयल्टी इतना देंगे, कॉपीराइट आपका होगा। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कॉपीराइट किसके पास है ये भी हमें पता नहीं होता, लेकिन आप अगर ओनर हो, आप एक्सक्लूसिव ओनर हो, तो यू कैन डिक्टेट द टर्म्स एंड यू कैन अर्न मनी लाइक एनीथिंग। आई होप कि दिस इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू बी इनफ। So, जैसे कि हम टेंजिबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, द प्रॉपर्टी विच हैज गॉट अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इंटेंजिबल, विच डजंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, डजंट हैव फिजिकल, दिस इज थॉट प्रोसेस। मेरे दिमाग में, जैसे कि आपको बताऊं कि अभी सब तरफ चल रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम, ये लॉकडाउन के दरमियान, कोविड-19 पेंडेमिक के दरमियान जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, सो वेदर वी शुड गो अहेड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर करनी है तो किस टाइप का उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। आप ऐसे बहुत सारे टीचर होंगे कि जिनके दिमाग में कुछ अलग अलग आइडियाज आते होंगे, जिनके दिमाग में कुछ अलग अलग आइडियाज आते होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो आइडियाज जो है ना, ये आइडियाज को हम क्या टच कर सकते हैं क्या? नो, वी कैन हैव एन नंबर ऑफ आइडियाज, like this is just an example I am giving you. So like that, many times you can have many ideas with you. That property, that is your intellectual property. कहाँ से आई? आपके दिमाग से आई, आपके ब्रेन से आई, right? So that is your intellectual property. That is intangible. Intangible means which doesn't have any physical existence. उसका जो product होगा, जैसा किताब होगा, that is going to be product that can be touched.
लेकिन वो जो थॉट प्रोसेस है, जो बुद्धिमत्ता, आपकी जो बुद्धि है, दैट इज व्हाट योर intellectual properties, that is intangible, which doesn't have any physical existence and we cannot touch that. Okay, so let me introduce more about intellectual property now. The property represented by the product, that is outcome of human mind, intellect and creativity. मतलब हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, इसका जो आउटपुट है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. उसके एग्जांपल के तौर पे इन्वेंशन है, इनोवेशन है. You can see now I have differentiated invention and innovation. There is a difference, right? I'm going to tell you. Then कुछ designs है, trademarks है, artistic creations है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज का लोगो है, आपके कॉलेज का लोगो मला माहित नाही, सर तुम्ही रजिस्टर केलाय का त्याला, आय डोंट नो, मला माहित नाही रजिस्टर केले की नाही. आता जर रजिस्टर जर केलं नसेल तर अशा प्रकारचा लोगो कोणी बनवू शकते. आता बामूचा लोगो आहे, आय डोंट नो वेदर इट इज रजिस्टर्ड. सो दिस लोगो इज गोइंग टू बी ट्रेडमार्क, राईट. तर बरेचदा असं होतं की आपण बनवतो, इव्हन तुम्ही बघा की आता मला माहित नाही की भोसले सर प्रिन्सिपल झाल्यानंतर तो लोगो तयार झाला की अगोदर तयार झाला, पण तुम्ही एखादे एक सेक्शन घ्या आणि त्याचा लोगो तयार करण्यासाठी कुठल्या आर्टिस्टला तुम्ही अप्रोच करा, and you see how much he is going to charge. He is going to charge very substantially. Let me tell you. आम्ही तुम्हाला सांगतो, आमचा DDUKK लोगो तयार करून घ्यायचा होता. आम्ही इथले एक आर्टिस्ट आहे, त्यांना बोललो तर तो म्हटलं की सर आय एम गोइंग टू चार्ज यू 50,000. अरे मी म्हटलं यार हे छोटासा लोगो तू 50,000 चार्ज करतोय. तो म्हटलं सर याला खूप विचार करावा लागतं, इतकं सोपं नाहीये. आणि यू कॅन सी राईट दिस काइंड ऑफ ट्रेड, बिकॉज याचा अर्थ काय माहितीये का की या डोक्यामध्ये आयडिया येणे आणि त्याला ऍक्च्युअल स्वरूपात उतरवणं याला खूप वेळ जातोय. अँड दॅट कॅन बी एनकॅश इन टर्म्स ऑफ मनी. तर हे सर्व जे आयपी जे आहे, दिस आर द एक्झाम्पल ऑफ प्रॉडक्ट, दिस आर द एक्झाम्पल ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीज. इन्व्हेन्शन आणि इनोव्हेशन मधला फरक मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगू इच्छितो. इन्व्हेन्शन म्हणजे काय की उदाहरणार्थ मी एक कॉस्ट इफेक्टिव्ह लॅपटॉप तयार केला, ओके, दॅट इज इन्व्हेन्शन. बट इफ इट इज नॉट बिंग यूज कमर्शियली एक्सप्लॉइट, unless and until your invention is commercially viable, that invention can never be considered as innovation. ओके, म्हणजे एक शोध तुम्ही लावलेला आहे, परंतु त्या शोधात जर शोध फक्त तो तुमच्या प्रयोगशाळेत पुरताच जर मर्यादित जर असेल तर त्याला इनोव्हेशन म्हणता येईल. आणि म्हणून तो प्रयोग जर समाजासाठी उपयुक्त असेल आणि त्यामधून जर तुम्हाला काही पैसा मिळत असेल तरच त्याला इनोव्हेशन म्हणता येतं. आणि म्हणूनच सध्या आपल्याला फक्त इन्व्हेन्शनची गरज नाहीये, आपल्याला इनोव्हेशनची गरज आहे. कारण फक्त आपण इन्व्हेन्शन करून जर थांबलो तर काहीच फरक पडणार नाही. तुमच्या माहिती सर सांगतो की रिसेंटली वी कम अप विथ, यू मस्ट हॅव सीन दॅट न्यूज, वी कम अप विथ हँड हेड ऑटोमॅटिक सॅनिटायझर, ऑटोमॅटिक सॅनिटायझर डिस्पेन्सर, सॉरी. आता हा जो डिव्हाइस आहे, इट इज व्हेरी सिम्पल डिव्हाइस. वी कॅनॉट हॅव पेटंट ऑन दॅट, बिकॉज पेटंट, मी पेटंटचं तुम्हाला नंतर सांगेल, पेटंट त्याच्यावर घेऊ शकत नाही कारण अशा प्रकारचे डिव्हाइसेस मार्केटमध्ये आहेत. परंतु बट दिस कॅन बी कन्सिडर्ड इन्व्हेन्शन, दिस कॅन बी कन्सिडर्ड इन्व्हेन्शन बिकॉज यू हॅव क्रिएटेड. ओके, कॉस्ट कॅन बी अ डिफरंट, लाईक सो फार लाईक आम्ही जो डिव्हाइस तयार केला त्याची कॉस्ट फक्त 400 रुपये आहे. Okay, it means so far whatever devices we have seen, all I mean most of devices are more than 600 rupees. And moreover, whatever the features we are providing, those features are going to be unparalleled with whatever devices which are there available in the market. आता हा जे हे जे इन्व्हेन्शन आहे फक्त लॅबोरेटरी आमच्या प्रयोगशाळेपुरतं जर मर्यादित जर राहिलं तर त्याला इनोव्हेशन म्हणता येत नाही. आणि म्हणून मला काय करणं गरजेचं आहे, आय नीड टू आयडेंटिफाय सम प्लॅटफॉर्म so that I can commercialize it, so that I can sell it. So unless, so म्हणजे काय झालंय, इन्व्हेन्शन लॅब मध्ये झालंय, नंतर त्याचा समाजासाठी उपयोग होतो आणि त्यामधून मला पैसा मिळतो. जेव्हा ह्या तिन्ही घटक सोबत येतात तेव्हाच त्याला इनोव्हेशन म्हणतात. आणि माझी विनंती अशी राहील तुम्हाला सर्व प्राध्यापकांना की वी शुड नॉट फोकस ओनली ऑन इन्व्हेन्शन, वी शुड फोकस ऑन इनोव्हेशन. सो I told you now what is the intellectual property. आता फक्त प्रॉब्लेम कसा आहे माहितीये का, या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आपल्याला हे माहित आहे, म्हणजे हे नवीन काही नाही, म्हणजे हे जे तुम्हाला सांगितलं हे तुम्हाला माहित आहे, परंतु त्याचे एक्सक्लुझिव्ह राईट घेण्याच्या बाबतीत आपण कधी विचार करतोय का? नाही, ते आपण करत नाही. आपण जसं माझं जर बिल्डिंग जर असेल, माझं घर जर असेल, त्याचा एक्सक्लुझिव्ह राईट मला हवा आहे, मला माहित आहे, परंतु माझ्या क्रिएटिव्हिटी, माझ्या डोक्यातून, माझ्या या ब्रेन मधून आलेली जे काही आयडियाज आहेत याला मी एक्सक्लुझिव्ह राईट घेण्याचा कधी प्रयत्न करत नाही. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट इज द राईट
which is going to provide you that kind of protection. Once you have IPR with you, nobody can steal it. म्हणजे कोणी त्याला चोरू शकणार नाही. आणि जर कोणी चोरलं तर you can go, you can file the you can initiate legal action against you. आता I'm going to tell you more about intellectual property. So this is like a intellectual property is like the physical properties. I told you like tangible properties. It can be bought, it can be sold, it can be mortgage, it can be licensed, or it can be exchange as well. मैं जैसे मैं घर बेच सकता हूँ, घर में mortgage कर सकता हूँ. Same thing, whatever, like if you are having copyright of a book, then you can either sell it or you can license it. License it मतलब क्या है? You can use the license to publisher for maybe for 5 years. Okay, after 5 साल के बाद में वो पब्लिशर के पास में कोई राइट नहीं होगा, आपके पास राइट होगा. और यू कैन एक्सचेंज मतलब आप एक बार ही उसको ये कर सकते कि ठीक है आप ये लो, आप मुझे ये दोगे. सो दैट काइंड ऑफ एक्सचेंज यू कैन डू. सो इफ द ओनर acquires legal right over the property, then he will be exclusive owner, and this intellectual property right provide you the means, is going to tell you how you can have, what are the advantages, what are the benefits, right? So IPR is going to provide you two different rights. One is legal right. लीगल राइट आपके पास हो, जैसे कि प्लॉट की मेरे पास रजिस्ट्री है तो कोई आके एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता. वैसे ही अगर किताब मैंने लिखी, आपको पता है देयर आर मेनी पीपल, आपको बताऊं कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जैसे कि फॉरेन ऑथर के आपको सभी को पता होगा कि देयर आर सम गुड फॉरेन ऑथर बुक्स एंड देयर आर सम पीपल व्हाट दे आर डूइंग कॉपी पेस्टिंग. वो फॉरेन ऑथर का ही कुछ एक पैराग्राफ लेते, दूसरा छोड़ते, तीसरा पैराग्राफ लेते, अपने नाम से पब्लिश करते, उसका कोई कॉपीराइट नहीं मिलता. क्योंकि कॉपीराइट के लिए आप जाओगे ना तो दे आर गोइंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ कॉपी पेस्टिंग इज देयर, प्लेगरिज्म वो देखेंगे. एंड इफ इट इज फ्री फ्रॉम प्लेगरिज्म देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट कॉपीराइट, अदरवाइज इज नॉट गोइंग टू गेट यू कॉपीराइट. सो कॉपीराइट एक अपना आप में एक चेक पॉइंट है. अगर कॉपीराइट आप लोगे इसका मतलब ये है कि आपका किताब डेफिनेटली इट इज फ्री फ्रॉम प्लेगरिज्म. That is also one of the advantage. So you are going to have legal right. Another है possible rewards in terms of social status. क्योंकि आप देखिए, आप अगर शिवाजी कॉलेज में हो और आपके पास 10 कॉपीराइट है तो आपका एक सोशल स्टेटस होगा. प्रिंसिपल साहब आपको एक अलग इससे देखेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे. एंड एट द सेम टाइम आप अगर रॉयल्टी को शेयर कर रहे होंगे, रॉयल्टी यू कैन शेयर maybe 5%, forget about 80%, maybe 5%. आपको 2 लाख मिलते, 5,000 दो. Institution will be very happy that my teacher is giving me a 5,000 rupees royalty share. So you are going to have social status, you are going to have economical enrichment as well. So these are the possible rewards you are going to have and may become source of national wealth. क्यों? क्योंकि मैं बताऊं कि अगर आपको national wealth ऐसा है कि if everybody started thinking, आप सोचिए, if everybody started thinking like this, आप देखिए ना आपके कॉलेज के कम से कम मैं बताऊं कि आज के डेट में मिनिमम 500 तो बुक होंगे, मिनिमम 500 बुक होंगे. आप देखिए, सोचिए, आप सोच कर देखिए कि 500 बुक के कॉपीराइट आपके पास है. फॉरगेट अबाउट 500, 100 तो होंगे 100 के कॉपीराइट आपके पास है, उसकी रॉयल्टी आपको मिल रही है, आप खुद भी एनरिच कर रहे हैं अपने आप को फाइनेंशियली एंड यू आर एनरिचिंग योर कॉलेज एज वेल. सो इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ नेशनल वेल्थ and that is why this kind of awareness is going to play a very important role. So as far as intellectual properties are concerned, broadly intellectual properties can be divided into two. One is industrial property, other is copyright. Now what is industrial property? Industrial property का मतलब अब मैं समझाना चाहता हूँ. It has nothing to do with industry. Okay, industrial property मतलब ये कि ऐसी property जो कि समाज के लिए जिसका कुछ ना कुछ utilization कर सके. That is what we call as industrial property. Patent है, these are the examples. Patent, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. मैं आपको इसका डिटेल समझाता हूं. एंड देन कॉपीराइट में क्या क्या आता है? राइटिंग्स, जैसे आपके पोएम्स हैं, आपके बुक्स हैं, म्यूजिकल वर्क है, ड्रामेटिक वर्क्स है, पेंटिंग्स है, ड्राइंग्स है, साउंड रिकॉर्डिंग्स है, ब्रॉडकास्टिंग है, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस है. जैसे कि आप देखिए, हमें पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि दे आर वेरी यूनिक इन देयर स्टाइल, दे आर वेरी यूनिक इन देयर स्टाइल. जैसे कि अमिताभ बच्चन है, राइट? अगर अमिताभ बच्चन ने उसके परफॉर्मेंस का अगर कॉपीराइट लिया, नोबडी कैन डू इट फॉर अर्निंग मनी. ओके, हाँ, आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो. आई कैन डू मिमिक्री ऑफ अमिताभ बच्चन, नॉट फॉर अर्निंग मनी. लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे परफॉर्मेंस का मुझे कॉपीराइट लेना पड़ेगा. सो इवन लाइक टीचिंग भी,
अगर आपका अगर टीचिंग यूनिक स्टाइल है एंड इफ यू आर हैविंग कॉपीराइट, दैट कैन बी, ऑफ कोर्स योर स्टूडेंट कैन यूज इट, बट दैट कैन नॉट बी यूज फॉर अर्निंग मनी. Okay, if somebody is earning money, then you can initiate legal action against him. So आप देखिए कितना कितना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है. So major type of IPs, जैसे मैंने बताया, these are major types like functional and technical invention. उसमें इन्वेंशन में जैसे कि डिवाइसेस होंगे, आपका प्रोडक्ट होगा, कुछ प्रोसेसेस होंगे, जैसे कि मेडिसिन आपने इन्वेंट किया, कुछ एक वोटिंग मशीन इन्वेंट किया, राइट, एक प्रोडक्ट फॉर्म में. क्या प्रोसेस है, जैसे कि मान लो साइंस की जो फैकल्टी मेंबर वो समझ पाएंगे मैं क्या बता रहा हूँ, कि जैसे कि एक मटेरियल आपको ग्रो करना है, स्टील फॉर एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल देता हूँ, स्टील ग्रो करना है. सो अभी कन्वेंशनली जो स्टील ग्रो करते हैं उसके इफ यू आर यूजिंग दैट मेथड, देन उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो एक पर्टिकुलर है, नंबर में बता नहीं रहा हूँ, राइट. एंड देन ऑल ऑफ ए सडन, जैसे कि हम आपको बताया कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए स्टील यूज करते, हम कभी भी उसका स्ट्रेंथ देखते नहीं ट्रूली स्पीकिंग. लेकिन आप अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जो बिल्डर्स है, बिल्डर जब वो स्टील परचेस करते हैं तो वो ऐसे ब्लाइंडली परचेस नहीं करते, दे ऑलवेज लुक इनटू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील. क्या स्ट्रेंथ है, अकॉर्डिंगली दे आर, बिकॉज दे आर गोइंग टू परचेस इज वेरी ह्यूज क्वांटिटी. घर हम जब हमारा खुद का घर कंस्ट्रक्ट करते तो क्वांटिटी उतना ह्यूज नहीं होता है. तो जैसे कि मान लो स्टील फैब्रिकेशन की बात कर रहा था मैं, तो मान लो आपके पास कुछ ऐसी आइडियाज है, जो प्रोसेस है कि जिसके वजह से स्टील का स्ट्रेंथ अलग बढ़ सकता है. सो प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, दिस प्रोसेस, ओके, उसके लिए भी पेटेंट ले सकते हैं आप. तो पेटेंट का मैं डिटेल आपको बताऊंगा, ओके. एंड देन प्योरली आर्टिस्टिक वर्क, जो मैंने बताया, जैसे आपकी पोएम है, आप सिंगिंग करते हो, आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ऑलगोरिथम है, देयर आर मेनी, डिटेल हम बताएंगे आपको. एंड देन थर्ड वन है सिंबल्स, जैसे लोगो है, कुछ डिजाइन्स है, कुछ उसके भी मैं काफी एग्जांपल दूंगा. सो देयर आर डिफरेंट लॉज. आप देखिए पेटेंट एक्ट 1970, 1999, 2005, मतलब पहला एक्ट पहली बार 1970 में आया इंडिया में. एंड देन there are subsequent two amendment 1999 and 2005. वैसे कॉपीराइट के एक्ट पहली बार हमारे पास है 1957, उससे पहले नहीं था. एंड उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 5 बार उसमें अमेंडमेंट हुआ. And same thing is true with trademark too. Like we started from 1999 and then there are 3 subsequent amendment. अब डिजाइन की बात करते, वन बाय वन आपको समझाता हूँ. अब डिजाइन जैसा कि अब देखिए, आपको पता होगा कि कुछ एग्जांपल मैंने आपके बड़े वेल नोन एग्जांपल मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ. जैसे कि आप पता नहीं आप जैसे ये 2 ब्रांड मैंने खास तौर पे यहाँ पर रखे हैं. जैसे कि बाटा का ये हश पपी का एक पर्टिकुलर ब्रांड है, ये स्पेसिफिक डिजाइन है. नाउ मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको हश पपी का डिजाइन चाहिए, वो यही डिजाइन पसंद करेंगे. वो एब्सोल्युटली, मतलब आप देखेंगे ये डिजाइन आप अगर देखिए, इट इज कॉस्टली शूज, इट इज कॉस्टिंग अराउंड 3000 रुपीज. अगर आप किसी और कंपनी का लेने को जाओगे तो इट कॉस्ट वुड बी मे बी 1000 2000, लेकिन उस लेवल का कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा. So if you are very much specific about this kind of design, you will be going to this design only. ये दूसरा एग्जांपल वुडलैंड का मैंने एग्जांपल दिया. इसके आगे मैं बोलता हूँ आपको, कारें है हमारी, मोटरसाइकिल्स है, मारुति कार है. There are some people they don't like मारुति कार का डिजाइन. उनको कुछ लोग हैं उनको हुंडई का डिजाइन चाहिए, कुछ को होंडा का डिजाइन अच्छा लगता है. सो इट डिपेंड. जब हम कार परचेस करते हैं, इट्स नॉट ओनली उसका माइलेज क्या है, हम डिजाइन भी देखते हैं. डिजाइन अच्छी लगी तो हम लेते हैं, डिजाइन अच्छी नहीं लगी तो हम थोड़ा ज्यादा भी खर्चा करने को तैयार होते हैं. सो दिस इज अ ब्यूटी. सो ये जो डिजाइन है, अगर आपके दिमाग में आपका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ओनली प्रोडक्ट बाहर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसका प्रॉपर डिजाइन क्या होना चाहिए, उसका डिजाइन का भी आप पेटेंट ले सकते हो. आप अगर डिजाइन उसका अगर एक बार रजिस्टर करोगे, नोबडी कैन डुप्लीकेट. व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज इज यू कैन क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटरीज. ये डिजाइन अगर डिजाइन करोगे, नोबडी एल्स कैन कॉपी इट. आप कहीं पर भी इस टाइप का, आप जैसे देखिए आप यूएस में जाएंगे तो सेम शूज आपको मिलेगा. सो दिस इज द एडवांटेज. आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ. डिजाइन में 2D 3D के डिजाइन हो सकते हैं. इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एनी मींस, एंड सच डिजाइन शुड नॉट बी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एनी डिजाइन शुड नॉट बी contrary टू पब्लिक ऑर्डर और morality or does not contain explicit or shameful matter. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी रिलीजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली डिजाइन नहीं होनी चाहिए. जैसे कि मान लो हमें पता है कि हमारे पास ग्रीन कलर, ब्लू कलर, दिस कलर्स आर मेंट
फॉर हमें स्पेसिफिक इसके कम्युनिटी के लिए जाने जाता है. सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग, इट्स नॉट ओनली कलर अलोंग विद सम सिंबल, वो उस टाइप का सिंबल हम यूज नहीं कर सकते. इसलिए कभी कभी आपको पता होगा कुछ मूवीज में कुछ रिलीजन से रहकर कुछ अगर इश्यूज अगर रहे, सो दे कैन गो टू द कोर्ट एंड दे कैन टेक लीगल एक्शंस कि भाई ये हमारे रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली ये फिल्म है. इसलिए क्या होता है ना, उसका वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है, पर्टिकुलर पार्ट जो है, उनको डिलीट करना होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ड्यूरेशन कितना होता है? वंस यू हैव रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए, और 5 साल का उसको आपको एक्सटेंशन मिल सकता है. इसका मतलब ये है कि एक बार डिजाइन आपने किया 15 साल आपके पास हो सकता है. उसके बाद में क्या होगा? 15 साल के बाद में इट इज ओपन. बट लेट मी टेल यू, 15 साल के बाद में तो फैशन ही चेंज हो जाएगा. जैसे आपको पता होगा कि एक जमाना था, मतलब कुछ सीनियर टीचर है उनको पता है कि वी यूज्ड टू वेयर बेल बॉटम पैंट. अमिताभ बच्चन की स्टाइल थी, बेल बॉटम थी. बाद में कुछ अक्षय कुमार आया, उसमें वो बैगी टाइप शुरू हुआ, बैगी का आया. देन फैशन चेंज होते हैं, आफ्टर लाइक एवरी 10 years फैशन इज गोइंग टू चेंज. एंड देन उसके बाद में अभी स्किन टाइट पैंट आ रही, पैरेलल आई, स्किन टाइट आई, एंड देयर आर मेनी चेंजेस, राइट. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि 15 साल के बाद में वो डिजाइन आपके पास नहीं भी रही तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज गोइंग टू बिकम एब्सोल्यूट 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में. एडवांटेजेस के डिजाइन की क्या है? द प्रोप्राइटर हैज एक्सक्लूसिव राइट टू अप्लाई द डिजाइन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब डिजाइन अगर आपके पास है तो जैसे कि आप देखिए कि ये वुडलैंड का इस टाइप का डिजाइन आपको वुडलैंड में ही मिलेगा, किसी कोई और में नहीं मिलेगा. कुछ लोग ऐसे दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द कंफर्ट, उनको डिजाइन चाहिए, तो वो क्या करेंगे? बाटा के पास ही जाएंगे. इसका एग्जैक्टली सेम डिजाइन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अगर डिजाइन करने की दूसरा कंपनी की कोशिश करेगा तो इनके पास उसका डिजाइन का रजिस्ट्रेशन है, दे कैन गो टू द कोर्ट. दिस इज द एडवांटेज. सेकंड इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क जैसे मैंने बताया कि लोगो, ट्रेडमार्क इज अ काइंड ऑफ वर्ड, नेम, लोगो, लेबल, राइट. जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं एग्जांपल के साथ ही समझाना पसंद करूंगा. अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, कुछ एग्जांपल, 2 एग्जांपल मैंने लिखे. दिस इज दिस पर्टिकुलर सिंबल ट्रेडमार्क इज वेरी फेमस फॉर वाइवो, दिस इज वेरी फेमस फॉर एचपी. अब देखिए कि ऐसा सिंबल, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ एचपी, आप खाली सिंबल देखेंगे क्योंकि लैपटॉप पे पीछे लिखा होगा, मेरा लैपटॉप एचपी का है, पीछे दिखाई देगा. कुछ लोग हैं जिनको एप्पल चाहिए. सो दिस मतलब वंस यू हैव दिस काइंड ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, सिमिलर काइंड ऑफ इवन डिजाइन भी, लैपटॉप की भी डिजाइन होती है, मतलब डिजाइन भी होगा लैपटॉप का. जैसे कुछ लोग हैं कि उनको फीचर सब सेम रहेंगे इनसाइड, मतलब प्रोसेसर क्या होगा, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेकिन उसका डिजाइन पसंद नहीं आएगा. सो डिजाइन का अगर रजिस्ट्रेशन आपके पास है, वो एक्सक्लूसिव मान लो एचपी के पास है, सो दैट काइंड ऑफ डिजाइन कैन बी सोल्ड बाय एचपी ओनली, तो पैसा कमा सकता है. तो डिजाइन का आपके पास होते हैं. आप देखिए ये एग्जांपल, मैकडोनल्ड देखिए, आप कहीं पर भी जाइए, मैकडोनल्ड ये आप आओगे तो मैकडोनल्ड यहाँ पर दूसरा कोई सेल नहीं कर सकता. विमल है, देयर आर मेनी, आई हैव कोटेड सम ऑफ द एग्जांपल्स. ये कोका कोला है. सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल आई कैन बी कोटेड, बट आई हैव कोटेड सम ऑफ दैट. सर्विस इंडस्ट्री, दिस वाज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सर्विस इंडस्ट्रीज है, एयरलाइंस, जैसे नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन का सिंबल है, आप हर इंडियन एयरलाइन का अलग ट्रेडमार्क है, आप कैथे पैसिफिक का अलग सिंबल है. आपको मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं. व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज ये होगा कि मान लो आप कहीं फॉरेन जा रहे हो, आपको क्वांटास, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, ऑस्ट्रेलियन का बेस्ट एयरलाइन है क्वांटास. आप कोरिया जाना चाहते हो तो उसका है कोरियन एयरलाइन. अब वंडरफुल सर्विस. अगर आपको कोरियन एयरलाइन ही पसंद है तो आप वो सिंबल देख कर ही आप भागेंगे, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इसका मतलब क्या है कि इफ यू हैव रजिस्टर्ड दिस काइंड ऑफ ट्रेडमार्क ऑन योर नेम, देन यू कैन अट्रैक्ट कस्टमर लाइक एनीथिंग अक्रॉस द टेरिटरी. सर्टिफिकेशन मार्क्स है ट्रेडमार्क के. आप देखिए एक जमाना था हमारे पास, हम ये एडमार्क का ये देखा करते थे. इट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वालिटी. ये अगर आप किसी भी आपका जो फूड आइटम है उसके ऊपर ये अगर सिंबल अगर दिखाई देता था तो आप अभी भी हम देखते, हम वी आर नॉट दैट मच अवेयर. हम ट्रूली स्पीकिंग इंडिया में उतना हम अवेयर है ही नहीं.
फूड आइटम्स के बारे में. Otherwise, if you go to many developed countries, they will see like unless they have some quality symbol, quality trademark symbol, they are not going to buy the any food item. But India में भी ये हुआ करता था. And this is the summary. You can see it includes. अब देखिए ये example के तौर पे बोलता हूँ, ये जो Vivo का है, it is a wonderful example combination of analog and digital. This is analog signal and this is digital signal. दिखने के लिए बड़ा आसान है, लेकिन आपको मैं बताऊं जिसने भी डिजाइन किया होगा, he must have earned substantial money. जो आर्टिस्ट होगा उसने काफी पैसा लिया होगा इस कंपनी से. So what is the duration? Duration is 10 years plus 10 years plus 10 years. इसका मतलब पहले ये जो है ट्रेडमार्क, once you have the trademark HP, throughout life आपके पास रह सकता है. मतलब पहले 10 साल का होगा and then every 10 years you can have the extension. Infinite time के लिए आप extension for up to every 10 years you can do the extension. इसका मतलब ये होगा कि ट्रेडमार्क आपके पास forever रहेगा. इसके साथ साथ जो मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में एक बात मैंने ऐड नहीं की, दैट इज ट्रेड सीक्रेट. एक ट्रेड सीक्रेट नाम की एक अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बिजनेस का सीक्रेट, राइट, दैट आल्सो कैन बी रजिस्टर्ड. क्योंकि आजकल क्या होता है ना, आपको बताऊं कि कुछ ट्रेड सीक्रेट ऐसे होते हैं कि दैट कैन बी स्टोलन. जैसे कि मान लो हम 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एंड इफ आई डिस्क्लोज, लाइक आई एम ओनर ऑफ द कंपनी, and if I disclose my trade secret to all 10 of them, because I need to discuss, because since we are working together, मुझे तो disclose करना ही पड़ेगा. लेकिन अगर मैं disclose करता हूँ and then like one fine morning one of the my member, he said, sir, I don't want to work with you now because I'm going to jump some another firm. तो क्या होगा, मेरा trade secret वो वहां जाकर बताएगा. तो मैं जो आज मुनाफा कमा रहा हूँ शायद वो कल मैं कमा नहीं पाऊंगा. So you can register trade secret as well, and similarly for trade secret too, you can register that for infinite time. Once it is registered, वो आपके पास ही होगा. That is also another intellectual property. तो what is the advantage of, मैंने बता दिया लेकिन फिर भी कुछ बताता हूँ. एडवांटेज ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, क्रिएट ब्रांड आइडेंटिटी. आपका एक आइडेंटिटी क्रिएट हो, जैसे एचपी का आइडेंटिटी है, एप्पल का है, देयर आर मेनी, राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट कैन ट्रांसेंड दैट लैंग्वेज बैरियर. मतलब आप HP अगर मान लो इंडिया में अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो यू कैन सेल दैट अक्रॉस द ग्लोब. आपको कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं होगा. वहां पर वो मराठी जाने ना जाने, हिंदी जाने या ना जाने, बिकॉज द ब्रांड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक बजाज ऑटोज आर बीइंग सोल्ड in many countries. उसका लोगो जो है ना, that is creating their the brand. खाली इसमें फिर इम्पोर्टेंट हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि व्हाट आर द नॉन रजिस्ट्रेबल ट्रेडमार्क्स. तो क्या है, जैसे अशोक स्तंभ है, वी कैन नॉट यूज अशोक स्तंभ इन एनी ट्रेडमार्क. ओके. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी ट्रेडमार्क, भी सिंबल, जो भी लोगो आप करेंगे, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उससे किसी भी समाज की रिलीजियस भावना को आप एच नहीं पहुंचा सकते. सो दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. नाउ नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस. जियोग्राफिकल इंडिकेशन का वंडरफुल एग्जांपल में ये यहाँ पर लिखा हुआ है. जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है कि जैसा कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, वहां पर या तो कल्टीवेट होता हो, या तो वहां पर प्रोड्यूस होता हो, या तो उसी एरिया का कुछ बहुत खासियत हो, अलग कुछ स्पेसिफिक स्पेशलिटी हो, then you can register as that product as a geographical indicators. एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, दार्जिलिंग टी. आपको पता है दार्जिलिंग टी जो है ना, ये दार्जिलिंग टी उसी एरिया में मिलेगी. नागपुर ऑरेंज, नाउ आपको पता होगा कि ऑरेंज आर बीइंग produced in many other part of the country as well as Maharashtra. लेकिन नागपुर ऑरेंज टेस्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. आसाम टी है, बिदरी वर्क है, कोल्हापुरी ज्वेलरीज है. अगर इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का अगर रजिस्ट्रेशन अगर लेते हो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू कैन सेल. जैसे कि मान लो ऑरेंज मार्केट में, जैसे कि आप जब एप्पल परचेस करते हो तो आपको उसके ऊपर एक लेबल आता है, कैलिफोर्निया, कश्मीर, राइट. और वो हम क्या करते हैं, वो लेबल देके ज्यादा पैसा देते. उसका रीजन पता है क्या, वो तो फेक भी हो सकता है, हमें पता नहीं है. लेकिन अगर आपके पास अगर उसका रजिस्ट्रेशन है
नागपुर ऑरेंज का रजिस्ट्रेशन है, तो देन क्या होगा, मैं अगर कल औरंगपुरा में जाऊं और देखूं तो वहां पर आई कैन सी द नागपुरी ऑरेंज एंड आई कैन पे लिटिल बिट मोर बिकॉज इट टेस्ट डिफरंटली. देवगड, अब हापूस आंब्याचं बघा, आपल्याकडे हापूस आंबा, देवगडचा आंबा सांगून काय काय नाही विकलं जातं आपल्याकडे. आपण आपण सुद्धा आजच मी सकाळी जेव्हा येत होतो तेव्हा मी एका स्टोअरवर थांबलोय, तर तो म्हटला की 650 रुपीज पर डझन. त्याला म्हटलं बाबा हे इन्शुअर कसं करणार की हा देवगडच आहे म्हणून, माहित नाही आपल्याला. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज दे आर लाईक आपल्याला मूर्ख बनवतात. मोस्ट ऑफ द टाइम ओरिजिनल आंबा नसतोच तो. त्याचं कारण असं आहे की त्यांनी जॉग्राफिकल इंडिकेशनचं, असं मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगेल जॉग्राफिकल इंडिकेशनचं, याच्यात नसेल तर मी सांगेल तुम्हाला, की जर ते रजिस्ट्रेशन जर केलं तर त्यांना त्या प्रोडक्टवर तो स्टॅम्प मारता येऊ शकतो. एंड देन दैट वुड बी द आइडेंटिटी. यू कैन नॉट, हम पूछ सकते भाई चलो इसके पास स्टैम्प है क्या, तो देवगढ़ का होगा, नहीं तो नहीं होगा. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन. ये साड़ी देखिए, कुछ महिलाएं होगी इसीलिए जानबूझ के मैंने ये कुछ स्लाइड्स बनाए. पैठनी साड़ी, इट इज वेरी फेमस. अभी भी जब भी कोई बाहर से आता है तो दे आर वेरी कीन टू परचेज पैठनी साड़ीज. आप कभी बनारस गए तो आप मतलब अगर आप महिला हो तो आपके जो स्पाउस जब बनारस जाएंगे तो आप बिल्कुल आप बोलोगे कि देखो आपको आते समय एक बनारस सिल्क साड़ी लानी ही है. लखनऊ जाएंगे, लखनऊ चिकन, देन ये जो मदुरई का सिल्क है, देयर आर मेनी. कुछ एग्जांपल मैंने बताए. बिकॉज द रीजन इज, आपको पता है अभी प्रॉब्लम कैसा है, बनारसी सिल्क सही सब तरफ मिलता है, हमें पैठनी साड़ी भी सब तरफ मिलती है, बट ओरिजिनल पैठनी साड़ी यू कैन बाय ओनली फ्रॉम दिस रीजन ओनली. वो कब कौन जान सकता है जो सही, जैसे कि मैं खुद अभी आपको बोलता हूँ, कुछ दिन पहले मैं बनारस गया था एक कोर्स करने के लिए. एंड देन द ऑर्गेनाइजर टुक अस टू वन स्मॉल प्लेस. वो प्लेस का नाम मुझे याद नहीं. एंड देन वंस वी विजिट दैट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वी वेंट टू द शॉप and then he started showing us Banarasi silk sarees, and most of them were duplicate. Reason क्या है कि स्टैम्प नहीं ना, क्योंकि जोग्राफिकल इंडिकेशन का अगर रजिस्ट्रेशन किया होता तो स्टैम्प होगा, ऑथेंटिकेट स्टैम्प होगा. देन मतलब उसके लिए क्या होगा, दो बातें हो सकती. एक तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू भी आप अवेयर कर सकते हो, मतलब आप चीटिंग से बच सकते हो. एंड देन यू कैन एज ए मैन्युफैक्चरर यू कैन अर्न मनी लाइक एनीथिंग. Unfortunately, it is not happening most of the time. ये एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले आप शैंपेन, जैसे कि ये आई डोंट नो दिस बट स्टिल आई थॉट लेट मी पुट दिस इज वंडरफुल एग्जाम्पल. शैंपेन आप सभी को पता होगा, सभी को तो मोस्ट ऑफ द, आप पीते नहीं होंगे लेकिन पता तो सभी को होगा. लेकिन आपको पता है शैंपेन नाम क्या है, कैसे है? शैंपेन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्रांस. मैं खुद गया था इस जगह पे. Reims is the main bigger city, लेकिन Champagne is the name of district. Champagne is the name of district. Basically ये Champagne जो है, Champagne आप उसी लेवल पे लगा सकते हो जो इस रीजन से Champagne आती है. अदरवाइज आपको पता होगा कि नासिक, पुणे में भी हमारे पास वाइन बनती है, but that is not being labeled as a Champagne. That is being labeled as a sparkling wine. Basically Champagne is sparkling wine. We know that. लेकिन शैंपेन का ब्रांड जो है, बिकॉज उन्होंने उसको रजिस्टर किया हुआ है. एंड देन ओनली दोज, खाली वहां से जो प्रोड्यूस होगा, मतलब आपको अगर शैंपेन प्रोड्यूस करना है, आपको मैन्युफैक्चर बनना है, यू नीड टू गो टू रीम्स इन फ्रांस. वहीं पर कर सकते हैं. आप यहाँ प्रोड्यूस करके शैंपेन नहीं लिख सकते. आप लिखोगे स्पार्कलिंग वाइन, लेकिन शैंपेन नहीं लिखोगे. एंड दैट इज व्हाई शैंपेन इज वेरी वेरी कॉस्टली. रीजन ये है, बिकॉज दे हैव रीजन क्यों है, क्यों पैसा कमा रहे, बिकॉज उन्होंने उसको रजिस्ट्रेशन किया है. दूसरा एग्जांपल देता हूं, काफी लोगों को पता होगा स्कॉच. वी नो स्कॉच इज ब्लेंडेड विस्की. डू यू नो व्हाट इज द स्कॉच इज, बिकॉज स्कॉटलैंड से बनती है. स्कॉच जो है ये आप किसी भी इसमें स्कॉच नहीं लिख सकते. ये जो स्कॉटलैंड से जो वहां जो मैन्युफैक्चर होता है वहीं पर लिख सकते हैं. दैट इज व्हाई दिस स्कॉच इज वेरी कॉस्टली. आप दूसरा कोई ब्रांड लीजिए, यू कैन, आई मीन डिफरेंस होगा आपका कम से कम 5 times, but Scotch is going to be 5 times more costly because they have registered as under geographical indications. एक एग्जांपल में यहाँ पर नहीं हो, लेकिन एग्जांपल में देता हूँ. बासमती राइस. जब मैं यूएस में था, we used to eat बासमती राइस, राइट? आपको पता होगा कि बासमती ओरिजिनल, अभी आज तो आपको पता है कि बासमती राइस is being produced across the country. It's not only across the country, across the globe. आपको बताऊं, across the globe. बासमती ने अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपको पता होगा
आपको आपको इतना तो पता होगा कि जब हम बासमती परचेस करते हैं तो एवरी टाइम वी आर नॉट गोइंग टू बी लकी। हम कभी कभी वी आर गोइंग टू बी लकी कि हम कहते यार ये बड़ा अच्छा राइस मिला हमें, और बहुत बार बोलते यार ये दिखने में तो बासमती जैसा लगता है लेकिन टेस्ट तो बिल्कुल है ही नहीं। उसका रीजन ऐसा है कि ओरिजिनल बासमती राइस जो है ना वो हिमालय में तैयार होता था, हिमालय, राइट। अनफॉर्चुनेटली उस समय उन लोगों ने उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, एंड देन पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग दैट अक्रॉस द कंट्री। इसके आगे मैं बोलता हूँ, कुछ कुछ साल पहले की बात है ये, अमेरिका हैज स्टार्टेड ग्रोइंग सिमिलर राइस, उसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। देयर आर टू डिफरेंट राइसेस America is growing. It is similar to basmati, but taste is altogether different. क्या हुआ था, and they are selling in European countries. हम भी, हमारा भी ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता है ना, that is in European countries. सबसे ज्यादा अगर बासमती राइस कहीं कहीं एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज में। कुछ साल पहले इंडिया ने देखा कि अमेरिका इज चीटिंग अस, क्योंकि अमेरिका सेम हमारा ही राइस है, उन्होंने यहाँ से कॉपी किया, वहां पर उसमें उसके डीएनए में स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज कर दिया, एंड देन सर आई को आवाज येतो ना सर? येतोय ना? अच्छा, आवाज जर नाही आला, हां, नाही येतोय सर आवाज। सर जेव्हा कधी कधी काय सर नॅचरली म्यूट होतो बरं का मी, तसं झालं तुम्हाला सांगत चला, माझ्या लक्षात येणार नाही कारण मी बाकी स्क्रीन ऑफ, फक्त माझ्यासमोर हेच आहे प्रेझेंटेशनची स्क्रीन आहे फक्त, तसं झालं तर मला थोडं यस सर ओके। इंडिया ने देखा कि अमेरिका इज सेलिंग, and like they have got wonderful network as compared to India, and then they are selling at higher rate. तो इंडिया ने जाकर वहां पर कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज किया और कहा कि भाई ये तो हमारा प्रोप्राइटी है, ये तो हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। लेकिन यूएस को पता था, दे आर वेरी वाइज पीपल, उन्होंने बताया कि भाई आप बताइए कि आपने, अगर आपका ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है तो इंडिया के कहां किस किस रीजन में इसको उगाया जाता है। उन्होंने प्रूफ के साथ बताया कि ये हिमालय में भी है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, सब तरफ है। सो इट मीन्स दैट you yourself have not registered in your country, and how can you protect that? तो इसीलिए अगर जियोग्राफिकल इंडिकेशन का अगर एडवांटेज लेना है तो पहले हमारा ओन ओरिजिनल कंट्री में उसको रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया। सो यू कैन सी नाउ, मतलब आप अगर फार्मर हो या फार्मर के आसपास अगर आप रहते हो, एंड इफ युअर, जैसे की कन्नड, मला माहित आहे की अद्रक साठी कन्नड फेमस आहे, म्हणजे अद्रक फार लार्ज स्केलवर प्रोड्यूस केल्या जाते। जर समजा त्या अद्रकची टेस्ट जर काही वेगळी जर असेल, आता मला माहित नाही, भोसले सरांना कदाचित माहित असेल, कारण आम्ही कन्नड तालुक्यातले 5-6 गाव दत्तक घेतल्यामुळे आम्हाला कळालं की तिथे अद्रक खूप जास्त प्रमाणामध्ये तयारी केली जाते। जर तसं असेल आणि त्याची टेस्ट जर वेगळी असेल तर तुम्ही त्याला जिओग्राफिकल इंडिकेशनच्या खाली रजिस्टर करू शकता, आणि देन यू कॅन लेबल इट, अँड देन यू कॅन सेव लेबल। आता बघा, गावरान लसूण आणि हायब्रिड लसूण मध्ये जो फरक आहे, ज्यांनी टेस्ट केलं त्यांच्या लक्षात येते। आता त्याला ठीक आहे, कलरून लक्षात येत म्हणून ठीक आहे, पण दोन्ही जर लसणाचा जर कलर सारखाच असतात किती अडचण झाली असते आपल्याला। तिने जर काही युनिक प्रोडक्ट असेल, जर तुमच्या आसपास जर कोणी शेतकरी काही युनिक प्रोडक्ट म्हणजे मास केलेला युनिक प्रोडक्ट जर असेल, अँड इट हॅज गॉट अ डिफरंट ऑलटुगेदर डिफरंट टेस्ट, then I would request you to go ahead and register it under geographic indication, so that you can, monopoly आपके पास होगा, पैसा आप ज्यादा कमाओगे, and that way the customers are also going to be benefited, उनके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, पेटेंट के बारे में बोलता हूँ। Now patent and exclusive right granted by government, जैसे कि पेटेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ मोनोपोली, हर मतलब इट्स नॉट ओनली पेटेंट बट आईपी इज गोइंग टू प्रोवाइड अस मोनोपोली, राइट। सो किसके लिए मिलता है हमें, सॉरी, तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आई मीन क्राइटेरिया फॉर पेटेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोडक्ट या प्रोसेसेस, या दो में से किसी पे आप, या तो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए जैसे कि मेडिसिन है, कोई मशीन है। प्रोसेस का एग्जांपल मैंने बताया कि आप कोई मटेरियल बना रहे हो, existing process से better process आपने propose किया, and then you are projecting better property of that device or that material. Even दाल, for example, जैसे कि दाल मिल है, right? दाल मिल में जो processing होती है, अगर if you are having unique, जैसे कि जालना is very famous for दाल मिल, right? So if, but unfortunately they have not, जालना, this is true,
आप जालना की किसी दाल मिल की दाल खाइए एंड यू कंपेयर दैट विद अदर्स, डेफिनेटली यू विल फील दैट डिफरेंस, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट रजिस्टर्ड। तो आप अगर इस टाइप का अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको उस इसमें आएगा। आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ इन्वेंशन। तो पेटेंट, तो पेटेंट किसको मिलेगा? देयर आर 2-3 क्राइटेरिया। वो नॉवेल होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, एंड तीसरा होना चाहिए उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। इसका मैं डिटेल आपको पेटेंट का एक अलग आगे मैं बताऊंगा, उसका डिटेल मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बट आप इतना ध्यान में रखिए कि इन ऑर्डर टू हैव पेटेंट, your device need to be passed through 3 tests. One is novelty test, second is non-obviousness test, and third one is industrial applicability test. Okay, now patent हमें क्या क्या जनरल बातें मैं पहले बता दूं and then I will go to the details of patent. So patent हमें क्या देता है? What kind of protection? No patented invention can be commercially made, used, distributed or sold without patent owner consent. मतलब अगर आपके पास पेटेंट है तो उस टाइप का प्रोडक्ट कोई भी बना नहीं सकता। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि आपके पास कोई टीचर है, उन्होंने एक यूनिक ऐसा पावर सप्लाई था, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई टीचर है, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक यूनिक पावर सप्लाई तैयार किया, he has invented, okay, but if it has got some unique feature in terms of efficiency, in terms of output, in terms of product cost and so on and so forth, in terms of lifetime, okay, unfortunately they have not patented it, okay. अगर पेटेंट उनके पास नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, anybody can copy it। लेकिन पेटेंट आपके पास है तो क्या होगा? कमर्शियली कोई भी उसका मिसयूज नहीं कर सकता, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हो, लेकिन आपके परमिशन के बिना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पेटेंट राइट्स आर यूजुअली एनफोर्स्ड इन कोर्ट्स that in most of system for the authority to stop the patent infringement. इन्फ्रिजमेंट म्हणजे काय की त्यामध्ये इलिगल यूज, म्हणजे जर पेटंट तुमच्या नावावर जर असेल तर कोर्टामध्ये तुम्ही नाद मागू शकता, त्याला पेनल्टी होऊ शकते, आणि जो त्यांनी नफा जर केलेला, जसं उदाहरणार्थ एक डिव्हाइस मी तयार केला, माझ्या नावावर पेटंट आहे, एक्सट्राझेटने कॉपी केली आणि 2 कोटी रुपये कमावले, मी जर कोर्टात गेलो तर 2 कोटी त्याला मला परत द्यायचे आहेत आणि त्याला पेनल्टी सुद्धा बसू शकते. This is the beauty of the IP, patent, I mean having registering IP. At the same time, खालचं स्टेटमेंट तुम्ही बघा, conversely court can also declare a patent invalid upon a successful challenge by third party. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा आपण पेटंट सबमिट करतो तेव्हा काय होतं की एक्झामिनेशनला तुम्हाला बोलवलं जातं. सो यू विल बी कॉल्ड फॉर एक्झामिनेशन. Before examination, once your idea is registered, it is going to be published. After few days, it is going to be published. Published means your invention will be in open domain, and anybody can challenge. मान लो किसी XYZ का पेटेंट है, जैसे मेरा पेटेंट है और भोसले सर को लगता है कि इसमें कुछ दम नहीं है, it is झूठ, it is false. So he can go to the patent office and he can file the case against me और बताएंगे कि ये सिरसा सर ने जो भी किया है ये गलत है. And if we can prove it, अगर उन्होंने अगर प्रूव कर दिया तो मेरा जो पब्लिकेशन हुआ था वो मुझे आगे एग्जामिनेशन में मैं पास नहीं हो पाऊंगा. मान लो एग्जामिनेशन हुई, सब कुछ हुआ, पेटेंट ग्रांट भी हुआ, still at any time anybody can challenge, and therefore you have to be very careful. आप पेटेंट आपको मिला है, अगले साल किसी ने चैलेंज किया, and if he is successful, your patent is going to be withdrawn. That is going to be very important. आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. What are the rights? Owner has the right to decide who may or may not use the patented invention for the period during which it is protected. जैसे 20 साल की मैंने बताया कि पेटेंट हमें 20 साल का मोनोपोली देता है, तो 20 साल तक आप कुछ भी उसके साथ कर सकते हो. आप आपके घर में वैसे ही रख सकते हैं, आप किसी को सेल कर सकते हो. जैसे कि एग्जाम्पल में बोलता हूँ, मान लो मैं अमेरिका में बैठा हूँ, राइट, अमेरिका में या औरंगाबाद में बैठा हूँ और मैंने एक मेडिसिन इन्वेंट किया. ओके, अभी मेडिसिन इन्वेंट करके मैंने उसका पेटेंट ले लिया. अब पेटेंट लेकर, एंड दिस इज वेरी गुड, जैसे कि एग्जांपल कोविड-19 का मान लो मेरे पास, मैंने कुछ मेडिसिन इन्वेंट कर दिया, राइट. अभी अगर मैंने कर दिया, 2-4 पेशेंट को मैंने ठीक भी कर दिया, ICMR से उसका वैलिडेशन भी कर दिया, ओके, बट मैं एंड देन साइमल्टेनियसली आई हैव पेटेंटेड, ओके, पेटेंट कर दिया, अब मैं उसको किसको देना नहीं चाहता, मैं खुद भी नहीं तैयार कर रहा हूँ, दे भी नहीं रहा हूँ, तो क्या होगा? is going to be useless. Is going to be useless. Now second case होगा कि I am not going to sell to anybody. मैं औरंगाबाद में एक मेरी कंपनी होगी, मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा मेडिसिन एंड आई एम गोइंग टू सेल. अब कितना मैं सेल कर पाऊंगा? इट विल बी लिमिटेड ना. लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर करता हूँ,
इंडिया में भी 10 लोगों को उसको मैं 10-10 साल के लिए बेचता हूँ, अमेरिका में बेचता हूँ, इटाली में बेचता हूँ, सभी देश में बेचता हूँ, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अर्न लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट. सो पेटेंट का अधिकार अगर मेरे पास है, दैट कैन बी डन. लेकिन मैंने अगर वो उसको पेटेंट नहीं लिया, तो नेक्स्ट डे एनीबडी कैन कॉपी इट एंड ही विल बी इन लाइक वेल अहेड ऑफ यू, and he will be losing your all the property. So this is what it is, very very important. ये सब कौन देखता है? Every country has their own IP management system. ओवरऑल पूरे दुनिया पे लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कहते हैं द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO. ओके, दे आर लुकिंग आफ्टर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर कंट्री. उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है. कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं, कुछ माइलस्टोन आपको मैं शेयर करना चाहूंगा. ये कंसेप्ट आया कैसा, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये आया कैसा कंसेप्ट? तो आर्टिकल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट का, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो हमारे है, उसका जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, उसके आर्टिकल 27 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है. वहां से ये सब शुरू हुआ. पहली बार फर्स्ट टाइम दिस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइज की थी इन पेरिस इन 1883 and second time it was in 1886. so back to back. सबसे पहले कब ये अवेयरनेस शुरू किया? 1883 में पेरिस में हुआ था, एंड सेकंड टाइम बर्न में हुआ था. ये स्विट्जरलैंड का सिटी है. एंड तब से लेकर अभी तक देयर हैज बीन लॉट ऑफ अमेंडमेंट इन द. उसके बाद में हर देश ने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाया, लॉ बनाया, एंड उसमें they over the time they made the changes also. India में भी after every year April 26 is being considered as a so not India, April 26 is being considered as a World Intellectual Property Day. So as a result of that, we can create some sort of awareness among the intellectual property, among the human, I mean the society, for their awareness. इंडियन सिनेरियो कैसा है? दिस आर द, मैंने बताया ना आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया का ये ऑफिस है, ये उसका वेबसाइट है. एंड देयर आर 4 डिफरेंट रीजनल ऑफिसेस, क्योंकि एक जगह पे सब कुछ नहीं होगा. वी हैव गॉट मुंबई ऑफिस, एंड देन देयर आर सम सर्टेन स्टेट्स व्हिच विल बी लुकिंग आफ्टर मुंबई ऑफिस. दिल्ली ऑफिस का अपना ज्यूरिडिक्शन है, चेन्नई ऑफिस का अपना ज्यूरिडिक्शन है, कोलकाता ऑफिस का अपना ज्यूरिडिक्शन. ये आपको पता होना इसलिए जरूरी है. मान लो अगर आपको कॉपीराइट करना है, आपको पेटेंट फाइल करना है, तो कहां पर जाना है आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. जैसे मैंने बताया कि राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इज नॉट ओनली, ये तो हमें फाइल कैसे करना है ये तो बताते ही बताते, बट दे आर ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम. दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट, एज आई मेंशन अर्लियर, across the country where the proper training is being provided, structured training. There are certain international treaties also, हमें वो भी पता होना जरूरी है. अगर मान लो अपने आप को आप एनरिच करना चाहते हो, तो you need to see those international treaties so that you will be comparing your intellectual property with others. ये पता क्यों होना जरूरी है? बताऊं आपको कि मान लो मेरा एक इन्वेंशन है, तो उसका जुरिडिक्शन क्या होना चाहिए, टेरिटरी क्या होनी चाहिए, whether I should protect within India और I should go ahead and protect it in US. क्योंकि अगर मान लो, वो कैसे, कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है हमारा पेटेंट, जो ये पेटेंट अटर्नी होते हैं ना, उनको इसका नॉलेज होता है. उनको पता होता है कि इस टाइप का इन्वेंशन कहाँ पर कमर्शियली ज्यादा वायबल होगा, उसकी यूटिलिटी कहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, कहाँ पर लोग तुम्हारे आगे जा सकते हैं. अकॉर्डिंगली ही इज गोइंग टू गाइड अस, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू. सो इसीलिए हमें वो इंटरनेशनल ट्रीटी का नॉलेज होना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारा इन्वेंशन हम यूएस पेटेंट भी ले सकते हैं, यूएस का बंदा इंडियन पेटेंट भी ले सकता है, तो वो पता होना चाहिए. इसीलिए हमें ये इंटरनेशनल ट्रीटीज का जानकारी होना जरूरी है. देयर आर सम लॉज, एज आई मेंशन अर्लियर, आईपी लॉज राइट फ्रॉम 1957 ऑनवर्ड्स, जो भी अमेंडमेंट में है वो सब आपको नेट पे मिल सकते हैं आपको, इफ यू कैन सी दिस. अब कॉपीराइट पे मैं थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहूंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू बिलोंग्स टू द सोशल साइंसेस. व्हाट इज कॉपीराइट? The exclusive right given by law for certain terms of years to an author, composer, or his assignee to print, publish, sell copies of his own original work. इसका मतलब ये है, this is the Oxford English Dictionary definition of copyright. इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कॉपीराइट किताब, जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पास किताब है, आपके किताब का अगर कॉपीराइट आपके पास है, तो यू कैन सेल, यू कैन प्रिंट, यू कैन पब्लिश, जितने कॉपी चाहिए उतने आप कर सकते हो. अगर लेकिन वो कॉपीराइट अगर आपके पब्लिशर के पास है, तो देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आप खाली देख सकते हैं, पैसा वो कमा सकता है.
Now, what are the copyright which can be protected? What are the, I mean, the intellectual properties which can be protected? जैसे मैंने पहले बताया, original literary work, dramatic, musical, artistic work, films, movies, sound recordings. उसके डिटेल और मैं आपको बताऊंगा. हाँ, इसका टर्म कितने साल का होता है? कॉपीराइट की ब्यूटी देखिए कि वंस यू हैव कॉपीराइट थ्रू आउट लाइफ, मतलब लिटरेरी वर्क के लिए मैं आपको बताऊं, लिटरेरी वर्क के लिए आपके लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स. मतलब मान लो मैं 55, आई एम 54 इयर्स, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो रह गई, लेकिन उसके बाद भी अगले 60 साल तक, मतलब मेरे जो भी मतलब केयरटेकर होंगे, जो मैं जिसको मैं अधिकार किसको भी दे सकता हूं, सो दे विल बी लीगल जो मेरे मैं जिनका मैं अधिकार दूंगा मेरे सेल्फ प्रॉपर्टी को, सो दे कैन होल्ड द राइट अप टू 60 इयर्स. ब्रॉडकास्ट के लिए 25 साल का है. नाउ व्हाट आर द लिटरेरी वर्क, राइट? नॉवेल, जैसे मैंने बताया, आप नॉवेल लिख रहे हो, पोएम्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, कुछ ऐसा है कि जो इसमें लिखा हुआ नहीं, जैसे कि आप शेर व शायरी करते, दैट आल्सो कैन बी कॉपीराइटेड. बुक्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, इट्स नॉट ओनली एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, कितना भी बड़ा हो छोटा हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अभी मैं आपको बताऊं कि देयर आर मेनी, इवन कॉलेजेस में भी, फॉरगेट अबाउट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बीएससी के बच्चे, कि जो कंप्यूटर छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं. वो नॉवेल होने की जरूरत नहीं है, right? They can have the, because if they have developed on their own, they can have copyright, okay? लेकिन unfortunately हम लेते नहीं. टेबल्स है, कंप्यूटर टेबल्स है, कंप्यूटर एल्गोरिथम है, डेटाबेसेस है. मान लो आपने डेटाबेस तैयार किया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी ने वी हैव डेवलप्ड वन सॉफ्टवेयर फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम फॉर NAAC. दैट वाज यूनिक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय यूनिक. लेकिन मेरा कांस्टेंट, मतलब आई वाज कांस्टेंटली रिक्वेस्टिंग देम टू सबमिट कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फॉर कॉपीराइट, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट डू इट. तो हमने नहीं किया, तो हम उसको सेल नहीं कर पा रहे. There are many people they are asking us, but अगर हमने दे दिया वैसे, तो they will be doing on their own and they can sell to anybody. इसीलिए हम, क्योंकि कॉपीराइट नहीं है, इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं पा रहे. So you can have the copyright. सॉन्ग रिलीज है, मान लो आपने एक अच्छा सा एक गीत लिखा है, युनिक है, जसं आमच्या विद्यापीठामध्ये तुम्हाला माहित असेल की मराठीचे दासू वैद्य आहेत, मन उधाने वाऱ्याचे गाणं त्यांचं आहे, तुम्हाला माहित असेल, आपण ऐकलं की ते मधुर वाटतंय. कॉपीराइट त्यांच्याकडे आहे की नाही मला माहित नाही, पण अशा प्रकारचं जर कॉलेजमध्ये बरेचसे प्राध्यापक असतात की त्यांच्या वंडरफुल आयडियाज त्यांच्याकडे येतात, दॅट कॅन बी कॉपीराइटेड. व्हॉट एव्हर मला असं म्हणायचंय, यू कॅन सी प्रोग्राम मॅन्युअल, पंच कार्ड, मॅग्नेटिक टेप, कॉम्प्युटर प्रिंटआउट्स, कॉम्प्युटर प्रोग्राम, इवन लॅबोरेटरी मॅन्युअल्स. लेट मी टेल यू, आपण जे लॅबोरेटरी मॅन्युअल्स तयार करतो, इवन जसं सोशल सायन्सचे प्राध्यापक आहेत, तुम्ही सर्वे करता, ओके, बऱ्याच गावाचा सर्वे करता, सर्वे करून तुम्ही एक छोटंसं पुस्तक लिहिता, that also can be copyrighted because that is based on your own survey. आप बताइए कि वो सर्वे का मेथड क्या था, क्यों यूनिक था, how, because you know the method which you utilize, जो सर्वे के लिए जो मेथड आपने यूज किया होगा, इंटरप्रिटेशन के लिए मेथड जो आपने यूज किया होगा, कंक्लूजन के लिए जो मेथड यूज किया होगा, that would be unique. अगर उसको ओपन रखेंगे तो लोग कॉपी करेंगे उसको, आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा. लेकिन आप अगर उसको कॉपीराइट आपके पास होगा तो लोग क्या करेंगे, आपसे खरीदेंगे वो. सो दैट इज अ ब्यूटी. सो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, दिमाग से जो भी निकलता है उसका आप कॉपीराइट कर सकते हैं. पेटेंट का थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कॉपीराइट कैन बी व्हाट एवर कमिंग फ्रॉम योर ब्रेन, इट कैन बी कॉपीराइटेड. कभी कभी ऐसा होता है कि पेटेंट से कॉपीराइट बेटर होता है. उसका रीजन ये स्लाइड में दिया है. पेटेंट कन्फर्म मोनोपोलीज एंड एक्सक्लूड कॉम्पिटिटर फ्रॉम कंडक्टिंग रिसर्च. पेटेंट का कैसे नॉवेल होना बड़ा जरूरी होता है. मान लो अगर एक पर्टिकुलर, जैसा कि ये इसका ये जो ग्लास है, इसका मेकिंग का अगर पेटेंट मेरे पास है, तो 20 साल तक दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, उसमें इंप्रूवमेंट भी नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी मोनोपोली है. तो कंपटीशन, उसमें बिल्कुल हम कंपटीशन को क्या करते, बर्बाद करते. सो समटाइम्स पेटेंट ऑलवेज डिस्करेज द कंपटीशन, डिस्करेज द हेल्दी कंपटीशन. Public interest would be injured if every corporation could prevent anytime anywhere. क्योंकि अगर सब लोगों ने अगर ऐसा कर लिया कि पेटेंट को एनी टाइम एनीवेयर अगर कर दिया, तो पूरी दुनिया में कोई भी 20 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा. सो कभी कभी पब्लिक इंटरेस्ट भी उससे इंज्योर होता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नीचे का स्टेटमेंट देखिए, नो गारंटी फॉर इंडिपेंडेंट रिसर्चर दैट देयर इफेक्ट कैन बी पे ऑफ. इसका मतलब ऐसा है कि एवरी पेटेंट इज नॉट गोइंग टू बी कमर्शियली वायबल.
लेकिन अगर कमर्शियली वायबल अगर नहीं है तो इनोवेशन नहीं होगा और आपको कुछ फायदा नहीं होगा। रादर पेटेंट के रिन्यूअल के लिए पैसा देना पड़ेगा आपको, पेटेंट के लिए पैसा देना है, रिन्यूअल के लिए पैसा देना है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। कॉपीराइट में वैसा नहीं है, कॉपीराइट में आपको खाली पैसा ही लेना है। सो सम टाइम कॉपीराइट कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर पेटेंट। यही मैं बताया आपको। नाउ इन्फ्रिंजमेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉपीराइट की जब बात हम करते हैं तो क्योंकि आपको पता है कि नाउअडेज बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन फिंगर ऑफ टिप्स ऑफ योर फिंगर्स, गूगल में जो चाहे वो आप ले सकते हो। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कॉपी पेस्ट काफी हो रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट जो है मतलब इलीगल यूज, आपके पास अगर कॉपीराइट है कोई इलीगल यूज उसका कर नहीं सकता, अगर आपके पास कॉपीराइट नहीं है तो इलीगल यूज कर सकता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा क्विकली आगे बढ़ूंगा कि दिस इज वेरी सिंपल। ओके, उसके राइट्स क्या है, कॉपीराइट्स के राइट्स क्या है? देयर आर टू राइट्स, वन इज मॉरल राइट्स, दूसरा है इकोनॉमिक्स राइट्स। मॉरल राइट क्या है? टू प्रोटेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑथर, मतलब ऑथर का जो पर्सनैलिटी है वो प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि नोबडी एल्स कैन बी डुप्लीकेटेड सिमिलर थॉट, राइट? तो वो एक मॉरल राइट आपको मिलेगा। इकोनॉमिक राइट जो है आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट देगा। मॉरल राइट क्या क्या है? राइट ऑफ ऑथरशिप, राइट ऑफ इंटीग्रिटी, जैसे कि डिजिटल मैनिपुलेशन है, राइट ऑफ डिस्प्ले है, मतलब आप ही उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, आप ही उसके डिजिटाइजेशन में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बाकी कोई भी आपको उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। व्हाट आर इकोनॉमिक्स राइट? राइट ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोड्यूस आप कर सकते हो। राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन आप जितनी चाहे उतना कर सकते हो। डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब आप जैसे कि किताब है आपके पास, आप चाहते हो कि उसका पब्लिक परफॉर्मेंस हो, राइट? अगर आपके पास कॉपीराइट है तो आप मान लो, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं कि भोसले सर का किताब है and I would like to have the public performance based on the Bhosle sir book, so I need to have the permission from him। अगर उनके पास कॉपीराइट है तो वो मुझे कहेंगे कि सिरसार सर आप मुझे, ठीक है आप पब्लिक परफॉर्मेंस कर रहे हो तो मुझे 1 लाख रुपए दो, वैसे मैं नहीं दूंगा। लेकिन उनके पास कॉपीराइट नहीं तो मैं तो चुराऊंगा ना, उनके पास कोई अधिकार है ही नहीं। सो दिस इज व्हाट द कॉपीराइट कैन प्रोवाइड यू। राइट टू एडॉप्शन ऑफ राइट, कन्वर्जन इनटू अनदर फॉर्म, मतलब आपका जैसा कि किताब है उसको आप ड्रामा में कन्वर्ट कर सकते, उसको कंडेंस कर सकते, पिक्चराइज कर सकते, मतलब लिखा है आपकी स्टोरी है उसको पिक्चराइज कर सकते, मतलब किताब के ऊपर से आप सिनेमा बना सकते, मूवी बना सकते, राइट? ट्रांसलेशन, मराठी का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेजेस में आप कर सकते। रेंटल राइट्स, आप उसको किराए से दे सकते हो कि भाई ठीक है 1 साल के लिए मैं देता हूँ, आप जो चाहे वो करो, ट्रांसलेट करो, बेचो, क्या करो 1 साल के लिए। This is going to be very very important। ओनरशिप जो है, क्योंकि अभी काफी समय गया, ओनरशिप का मैं स्किप करता हूं सो दैट हमें क्वेश्चन आंसर का समय मिलेगा। मैं क्विकली, हाँ ये है रजिस्ट्रेशन, आप अगर करना चाहोगे तो आप अगर कॉपीराइट एक्ट अगर देखो तो सेक्शन 44 एंड 45 में आपको उसका रजिस्ट्रेशन का डिटेल आपको मिलेगा। नाउ आई एम गोइंग टू, ये तो मैंने आपको बताया 60 साल मतलब लाइफ टाइम और 60 साल के लिए होता है। पेटेंट के ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा समय दूंगा बिकॉज पेटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि पेटेंट आपको एक्सक्लूसिव राइट देगा। पेटेंट किस किस के लिए मिल सकता है आपको? प्रोसेस और प्रोडक्ट, जैसे कि आपने कोई मशीन बनाया, मेडिसिन बनाया, या तो मेडिसिन बनाने का तरीका आपने बताया, राइट? जैसे कि दाल मिल, एग्जाम्पल मैंने पहले भी कोट किया कि जैसे कि इवन फॉरगेट अबाउट दाल मिल, इवन ये सीड प्रोसेसिंग जो होती है ना, बहुत सारे ऐसे देहात में कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं कि वो सीड प्रोसेसिंग की भन्नाट आयडिया त्यांच्याकडे असतात। सो दैट इफ यू आर हैविंग डिफरेंट आयडिया, सो दैट आल्सो कैन बी पेटेंटेड। दिस इज प्रोसेस दैट आल्सो कैन बी पेटेंटेड। लेकिन उसके लिए मैंने जैसे बताया आपको कि 3 क्राइटेरियाज हैं, वो 3 क्राइटेरियाज फुलफिल होने जरूरी है। ओके, ये तो मैंने बताया आपको, क्योंकि 20 साल के लिए पेटेंट होता है। अगर पेटेंट आपको मिलता है तो यू विल बी, जैसे मैंने बताया कि हमारे टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लॉट का, जैसे कि प्लॉट है, कार है, इसके एक्सक्लूसिव राइट जैसे आपके पास है वैसे ही एक्सक्लूसिव राइट आपके वो डिवाइस के भी होंगे। रिन्यूअल फीस लेकिन आपको भरना जरूरी है। अगर रिन्यूअल आप फीस नहीं भरोगे तो आपका पेटेंट वैलिड नहीं रहेगा। एवरी ईयर यू हैव टू रिन्यू, मतलब 20 साल के लिए है बट एवरी ईयर यू हैव टू पे द रिन्यूअल फीस, सो दैट somebody is copying it
you can take legal action against him. अगर मान लो आपके पास 20 साल का पेटेंट मिला है, एक साल के बाद आपने रिन्यू नहीं किया, there are some people, आपको बताऊं कुछ लोग ऐसे हैं तो देखते रहते हैं कि किसने रिन्यू किया किसने नहीं किया, जिन्होंने रिन्यू नहीं किया उसका वो चुरा लेते और अपने नाम पे पब्लिश कर देते। So you have to be very careful. एंड इसलिए नीचे का स्टेटमेंट है, पेटेंटी शुड बी हिज हर और देयर ओन पुलिसमैन। इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास पेटेंट है, कोई कॉपी कर रहा है तो पेटेंट ऑफिस उसको पनिश नहीं करेगा, क्योंकि पेटेंट ऑफिस को पता नहीं रहेगा कि कौन क्या कर रहा है। आपको देखना है कि कौन आपके पेटेंट को कॉपी कर रहा है, कौन आपके प्रोडक्ट को कॉपी कर रहा है, एंड उसके अगेंस्ट आपको कोर्ट में जाना है। अगर व्हेनेवर इफ इट इज ट्रू, इफ यू कैन प्रूव इट इन कोर्ट, देन जैसे मैंने बताया कि उसने जो भी मुनाफा कमाया होगा वो मुनाफा आपको मिलेगा, एंड मोरओवर यू आर गोइंग टू यू कैन फाइन हिम एज वेल। हाँ, और 3 क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नॉवेल्टी। नॉवेल्टी मीन्स इन अदर वर्ड नॉन नोन टू पब्लिक इन एनी मैनर। सेकंड स्टेटमेंट, अब इसको इस नॉवेल्टी को थोड़ा अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। नॉवेल्टी हैज टू बी असेस्ड विद रेस्पेक्ट टू प्रायोरिटी डेट, the date of first disclosure, and this is very very important. Priority date का मतलब ये होता है कि मान लो, इसलिए हम कहते हैं कि whenever you have an innovative idea in your mind, you go ahead and file provisional patent. क्योंकि कैसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास एक आइडिया आई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोविड-19 के लिए मेडिसिन का मेरे पास कोई तरीका है, ओके, कुछ आइडिया है, बट इट विल टेक कपल ऑफ मंथ्स, राइट। आपको तो पता है पूरी दुनिया में कोविड-19 का वायरस ढूंढने के लिए लोग लगे हुए हैं। अगर मैं वो मेरे आइडिया को आज अगर प्रोटेक्ट नहीं करता, प्रोविजनल पेटेंट फाइल नहीं करता, तो क्या होगा कि कोई और मेरे आगे निकल सकता है। एंड देयरफॉर लेट अस से टुडे आई हैव फाइल्ड प्रोविजनल पेटेंट। एक साल के बाद में मैंने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया, तो मेरा नॉवेल्टी एक साल पहले का देखा जाएगा, आज के रेट का नहीं। हो सकता है एक साल के बाद कोई और सजेस्ट करेगा, but since that was my idea, so it is going to be novel, okay। इसीलिए ये important है कि it is with respect to the priority date of first disclosure, मतलब आपने उसको कब पहले डिस्क्लोज किया, okay। एंड उसके लिए ये नीचे का जो स्टेटमेंट है, बुलेट जो है, प्रायर पब्लिकेशन, प्रायर पब्लिक नॉलेज, प्रायर पब्लिक यूज, प्रायर पब्लिक डिस्प्ले, प्रायर क्लेमिंग, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि आपको अगर पेटेंट चाहिए, जब तक आप आपके आइडिया पेटेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं करते, तब तक आप किसी को मत बताइए, उसको पब्लिश मत करिए, उसको डिस्प्ले मत करिए, और कहीं पर क्लेम मत करिए। बहुत बार ऐसे हैं हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट भी, कि उनके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज होती है, उनको लगता है कि मैं पेपर पब्लिश करता हूँ, पेपर पब्लिश करते हैं, एंड देन दे थिंक ऑफ हैविंग पेटेंट। नो, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार पब्लिश हो गया, आप पेटेंट नहीं ले सकते। इसलिए अगर आपको पेटेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वंस यू हैव योर आइडिया, फाइल the provisional patent फाइल कर दिया, then you can publish, and then final patent आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि आपका डेट जो होगा पहला आपने कब डिस्क्लोज किया वो देखा जाएगा। So novelty is going to be tested like this. अब यहाँ पर मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ नॉवेल्टी का टेस्ट का। just 1 minute please। एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। उदाहरणार्थ मी मराठीत एक्झाम्पल देतो। एक गुलाबजामुन आहे, मी काय केलंय, गुलाबजामुन मध्ये मिरची भरली। आता काय झालंय, गुलाबजामुन मध्ये मिरची भरल्यानंतर काय झालंय, त्याची टेस्ट काय झाली, गोडच्या ऐवजी तिखट झालंय। सो इट इज गोइंग टू नॉवेल। जर मी सर्वसामान्य माणसाला दिला तो काय म्हणेल, येस इट इज व्हेरी नॉवेल, फर्स्ट टाइम आई हैव सीन, क्योंकि उसने पहले देखा ही नहीं होगा, उसने हर बार गुलाबजामुन मीठा खाया, अभी उसने तीखा देखा, तो इज गोइंग टू नॉवेल टू हिम, राइट। सो नॉवेल्टी पास होगा, राइट। लेकिन नीचे का स्टेटमेंट देखिए, डिस्कवरी में पास नॉवेल्टी टेस्ट, इट मे नॉट बी पेटेंटेबल, ओके। इसका मतलब नॉवेल्टी यहाँ पास हो गई, क्योंकि नॉवेल है, टेस्ट अलग है, नॉवेल है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी नॉन ऑब्वियस। नॉन ऑब्वियस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर मैं नॉन ऑब्वियसनेस के लिए मैं साइंटिफिक एग्जाम्पल दूंगा ही नहीं। नॉन ऑब्वियसनेस के लिए वो गुलाब जामुन का एग्जांपल आपके सामने मैं पेश करूंगा। यू कैन सी नाउ। अभी खाली एक स्टेटमेंट आप देखिए इसमें, सेकंड स्टेटमेंट, इन्वेंटिव स्टेप शुड बी डिफाइंड ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। मतलब नॉन ऑब्वियस जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। कब क्या होता है, जैसे कि हम जब पेटेंट सबमिट करते हैं तो यू विल बी कॉल्ड फॉर एग्जामिनेशन। When you will be called for examination, then
what will happen? Some expert will be sitting there, and those expert in front of expert आपको बताना होता है. You need to convince expert. आप आम आदमी के साथ में नहीं. तो आप देखिए, अगर मैं गुलाब जामुन में उसके बीच में अगर मिर्ची भरता हूं तो टेस्ट तो उसकी होगी तीखी. आम आदमी तो कहेगा ये नावल है, लेकिन वो जो एक्सपर्ट कौन होगा? सेफ. सेफ के लिए तो ये बड़ा आसान होगा ना. वो कहेगा कि बेवकूफ बना रहे हो क्या, आपने इसमें मिर्ची भरी है और मुझे कहते हो कि नॉन ऑब्वियस. इट इज ऑब्वियस. ये कहाँ होगा? ऑब्वियस मतलब क्या है? आप अगर मिर्ची भरोगे गुलाब जामुन में तो ये तीखा ही होगा. इट इज ऑब्वियस. ये नॉन ऑब्वियस हुआ नहीं. सो दिस इज व्हाट द नॉन ऑब्वियस मीन्स. सो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका रिसर्च होगा, जो भी आपका पेटेंट होगा, वो जो पेटेंट एक्सपर्ट है उस एरिया का, वो जब तक कन्विंस नहीं होगा तब तक नॉन ऑब्वियसनेस टेस्ट आप पास नहीं कर पाओगे. एंड देयरफॉर समटाइम्स योर इन्वेंशन may pass novelty test but may not pass एप्लीकेबिलिटी. उसका एप्लीकेशन है, आपको एप्लीकेशन प्रपोज करना पड़ेगा. अगर एप्लीकेशन आप प्रपोज नहीं कर पाओ तो पेटेंट नहीं मिलेगा. मतलब क्या क्या टेस्ट है? फिर 3 टेस्ट. 1 इट शुड बी नॉवेल, सेकंड इट शुड बी नॉन ऑब्वियस, और तीसरा जो है इंडस्ट्रियल applicability is useful. Going to be very important that claims anything obvious to contrary laws. जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को आप कॉन्ट्ररी अगर आप कुछ प्रपोज करोगे तो बिल्कुल आपको पेटेंट नहीं मिलेगा. एडल्ट्रेशन ऑफ फूड. आप फूड में अगर एडल्ट्रेशन आप अगर प्रपोज करोगे और कहोगे कि यार ये नया है, उसको आपको नहीं मिलेगा पेटेंट. मोरओवर खाली साइंटिफिक मतलब थेरोटिकल डिस्कवरी, उसको पेटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल कितना भी रिवॉल्यूशनरी क्यों नहीं होता उसको पेटेंट नहीं मिलेगा. एंड देन एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ. आजकल तुम्हाला माहित असेल की हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विन ही जी टॅबलेट आहे, ही टॅबलेट आपण भारताने जगामध्ये बऱ्याच लोकांना आपण एक्सपोर्ट केली, राईट. मध्ये मलेरिया नाहीच आहे. अमेरिका, युरोपियन कंट्रीमध्ये मलेरिया अब्सोल्युटली नाही आहे. तरी सुद्धा त्यांनी मागितली. त्याचं कारण असं आहे की त्यांना असं वाटतं, and many doctors feel that if we can use hydrochloroquine, we can cure the COVID-19 patient. Now, for example, if somebody is claiming that the same is being used for COVID-19 and this is my invention, no, this is not possible. Although it is being used, but because it is known for treating malaria due to mosquito bites, and therefore it can, although you are curing patient, COVID-19 patient, but it cannot be patentable. कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं आपको. जैसे कि आपने शुगर के साथ में आप कलर मिला लिया, जैसे कि आप मिक्सचर है शुगर और कलर का, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस ना, क्योंकि इट इज ऑब्वियस होगा. वो आपने शुगर मिला लिया, कुछ कलर मिला लिया, तो वो मीठा भी होगा और कलर भी होगा. तो इसके लिए ऐसे ऐसे मिक्सचर के लिए, ऐसे कोई ड्रिंक्स के लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा. और एग्जांपल देता हूं आपको. अम्ब्रेला है, मान लो आप अम्ब्रेला में आपने फैन लगा दिया, आप बता रहे हो कि ये इन्वेंशन है मेरा, तो ये तो ऑब्वियस है ना. आप अगर अम्ब्रेला में फैन लगाओगे तो ठंड हवा ही देगा वो, राइट. तो ये तो ऑब्वियस होगा, नॉन ऑब्वियस नहीं होगा, तो इसीलिए उसको आपको पेटेंट नहीं मिलेगा. दूसरा एग्जाम्पल है इम्प्रूव्ड सॉइल थ्रू फीडिंग फर्टिलाइजर्स. हमें पता है, सबको पता है, आप अगर फर्टिलाइजर दोगे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ेगा, ये सभी को पता है. इट इज ऑब्वियस, इज नॉट गोइंग टू बी नॉन ऑब्वियस, इसलिए आपको इसके लिए पेटेंट नहीं मिलेगा. एंड देन आगे चलकर जैसे कि आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, टोपोग्राफी उसकी, लिटरली आर्ट है, ड्रामा है, इसको आपको कॉपीराइट मिलेगा लेकिन पेटेंट नहीं मिलेगा. कुछ रूल्स है, सॉरी फीस है. फीस के बारे में बताना चाहूंगा कि आप अगर पेटेंट अगर फाइल करना चाहो तो 1600. अर्ली पब्लिकेशन, आपको पब्लिकेशन जल्दी चाहिए तो आपको अलग से भरना पड़ेगा. अदरवाइज only 1600 is going to be enough for filing patent, whether it is complete specification or
प्रोविजनल पेटेंट। लेकिन आप अगर किसी भी पेटेंट अटॉर्नी के पास जाओगे तो ही विल चार्ज एटलीस्ट 10,000 रुपीज। उसका रीजन ऐसा है कि आप देखिए नीचे रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, आप जब एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो अलग से 4,000 रुपए देना पड़ेगा। ये तो फाइल कर दिया आपने, लेकिन आपको एग्जामिनेशन के लिए अलग से 4,000 रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेनेवर यू आर ड्राफ्टिंग पेटेंट, तब आपको सर्च करना होता है, आपको पता नहीं होता, तो पेटेंट सर्च के लिए वकील अलग से पैसा लेगा, ओके, ड्राफ्टिंग के लिए अलग से पैसा लेगा, क्योंकि क्लेम जो होते हैं ना, क्लेम, मैं अब मेरा खुद का एग्जांपल बताऊं, जब हमने वी हैव फाइल्ड 6 पेटेंट, जब फाइल हमने खुद ने किए थे, लेकिन जब प्रोविजनल फाइल जब हमने खुद ने किए थे, जब हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ में जब फाइल करने गए तो हमारे एडवोकेट ने हमें बताया, तब मैंने ये कोर्स नहीं किया था, तो बताया कि भैया आपने तो बहुत सारे मिस्टेक किए, आपने क्लेम्स ही गलत किए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐसा है कि यू नीड टू हैव द मेनी क्लेम्स। अगर क्लेम आप अगर कम करोगे इसीलिए वो टेक्निकल लैंग्वेज जानना इतना आसान नहीं है अनलेस यू हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग। ये तो अवेयरनेस हुआ, क्योंकि ऐसे लेक्चर में आपको उस टाइप की ट्रेनिंग, उसके लिए आपसे अलग से लेक्चर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अलग से लेक्चर भी देते हैं कि हाउ टू राइट कॉपीराइट एप्लीकेशन, हाउ टू राइट पेटेंट, हाउ टू फाइल पेटेंट, उसके लिए भी हम अलग से लेक्चर्स लेते हैं। बट दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी। एंड कॉपीराइट के कुछ ये फीस है, आप देखिए लिटरली वर्क, क्योंकि कॉलेज के लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लिटरली वर्क के लिए आप 500 पर वर्क, कितना है, ओनली 500। तो पैसा ज्यादा नहीं लगता है, पैसा अब्सोल्युटली ज्यादा नहीं लगता है। एंड देन ये 500 प्लस ये 2000, इसके कुछ कंडीशंस है, मतलब 2500 रुपीज आपको कॉपीराइट के लिए लगेंगे। एंड फाइलिंग copyright application is not a big deal, of course filing patent is big deal, but filing application copyright is not big deal, that can be easily submit on your own। ये बाकी और सारे रेट है किताब का ही मैं आपको बताया, बाकी क्योंकि साउंड रिकॉर्डिंग है, सिनेमा मूवीज का कॉपीराइट है, देयर आर मेनी। ओके, सो इन समरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड यू एक्सक्लूसिव राइट, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे कि प्लॉट जो हमारी टेंजिबल प्रॉपर्टी की जैसे एक्सक्लूसिव राइट है, वैसे ही आईपीआर हमें एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है। इट आल्सो प्रोवाइड अस लीगल डिफेंस एंड ऑफर्स अस incentives in the form of social respect, incentives in the form of financial money, finance also. And as I mentioned, it helps us to enhance our social and financial status as well. Most importantly, the technological invention made the job of creators easy. This is true, because there has been tremendous improvement in technology and invention. Day by day you can see the new devices coming up, but at the same time it also made the job of copier also easy. Okay, so we have to be very, very careful about this, so that you will not be in trouble. Due to shortage of time, I have not quoted many, I would have quoted many examples for this, but I will stop here. And now this session will be open for